Assalamu alaikum and a warm good evening to all valued participants. I extend a sincere welcome to everyone attending today's free webinar organized by MedSparkles. We are pleased to have you with us for this session entitled Managing References Ethically and Note Basics for Researchers. It is my honor to introduce our esteemed speaker for today, Dr. Sabah Razzaq. She is a lecturer at Faculty of Pharmacy, Salim Habib University, and also a PhD scholar, actively involved in academic teaching and research. Dr. Sabah will guide us through ethical reference management and the essentials of EndNote for researchers. Her expertise and research experience make her an excellent guide for today's topic, especially for those who are new to reference management tools like EndNote. One important announcement. Participants who score 4 out of 5 on the post webinar quiz will receive a verified e-certificate. इस वेबिनार ये जो हमारा वेबिनार है ये हमारे पास जो है 11 PM तक यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पर इसका लिंक हम लोग शेयर करेंगे। जैसे ही आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर लिंक ओपन करके लिंक ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास वेबिनार का लिंक अपेयर हो जाएगा जो वेबिनार हमारा यूट्यूब पर अपलोड होगा। उस वेबिनार रिकॉर्डिंग के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आपको एक क्विज लिंक मिलेगा और उसके साथ एक प्रोटेक्टेड पासवर्ड मिलेगा। प्रोटेक्टेड पासवर्ड आप लोगों को एज इट इज कॉपी करना है। कैपिटल है तो कैपिटल में, स्मॉल है तो स्मॉल में। वो जब आप लोग डालेंगे क्विज लिंक के अंदर तो आप लोगों के पास 5 क्वेश्चंस अपेयर होंगे। लेकिन एक बात, इसके लिए ये जरूरी है कि आप लोगों ने रजिस्टर्ड अकाउंट बनाया हुआ हो मेड स्पार्कल्स पर। ठीक है, आप लोगों को अगर आप लोग रजिस्टर्ड नहीं है तो आप लोग अपना अकाउंट बनाएंगे पहले मेड स्पार्कल्स पर, फिर आप लोग जो है ईमेल और अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। और जो पहले से ही रजिस्टर्ड है वो लोग अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो क्विज लिंक और प्रोटेक्टेड पासवर्ड डालकर जब वो लोग ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास जो है 5 क्वेश्चंस अपेयर होंगे। 5 में से लाजमी है आप लोग 4 पास करें। अगर 3 भी आप लोगों ने ठीक किए तो आप लोगों को वेरीफाइड ई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अटेंडेंस का प्रोसीजर हमारे पास यही है। आप लोग 5 में से 4 क्वेश्चंस पास कर लेंगे तो आप लोगों को सर्टिफिकेट लिंक अपेयर हो जाएगा। आप व्यू सर्टिफिकेट पे जाकर अपना सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। Let us proceed with today's session. I now invite Dr. Sabah Razzaq to begin. Over to you, Dr. Sabah. Assalamu alaikum, Dr. Sabah. We are honored to have you here. Walaikum assalam. Thank you so much, Miss Dr. Zunaira. Thank you so Yes, much yes. for your kind introduction and for giving me the opportunity to sharing some practical insights regarding the most important and most considerable topic, that is EndNote. So basically, it's my first session, and I don't know the audience are from belong to which background. Like I exactly don't know they are from pharmacy background or from what kind of topic. So, but EndNote is a kind of topic that will be helpful for all of the participants that are working for on their research. So basically, first of all, I am going to share my screen. uh, Let me share first. Okay. Zunaira, my screen is visible Yes, for you. ma'am, your screen is visible and your voice is clear. Everything is perfect. Thank you so much. So let's start with the topic. Okay. So the topic of the webinar is managing references ethically and not basics for researchers. So मैं आज के जो discussion है, I want it to be a discussion based webinar. So basically, uh, uh, first of all, today the learning objectives for this session for from them participants will be able to learn understand ethical principles in referencing. आप रेफरेंसिंग करते कैसे हैं और कॉमन साइटेशंस कैसे कर सकते हैं, आप अपनी एंड नोट लाइब्रेरी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बेसिकली माय पर्पस ऑफ दिस वेबिनार वुड बी कि मैं आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करूं कि हाउ यू विल मैनेज एंड नोट, हाउ यू विल यूज एंड नोट। देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर जिससे आप रेफरेंसिंग कर सकते हो, बट
आज आपको एंड नोट की प्रैक्टिकल इंसाइट प्रोवाइड करूंगी। मैंने ऑलरेडी मेड स्पार्कल्स के साथ एंड नोट जो है सॉफ्टवेयर शेयर कर दिया है, बिकॉज इट्स अ पेड सॉफ्टवेयर। एवरीवन डोंट यू विल नॉट हैव एक्सेस ऑफ दिस, बट आपको एंड नोट अलोंग विद इट की प्रोवाइड कर दिया है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, एंड नोट को मेड स्पार्कल्स जब शेयर करेगा विद ऑल द ऑडियंस, सिंपली यू विल डाउनलोड द एंड नोट सॉफ्टवेयर। तो जब डाउनलोड होता है ना, जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो एंड नोट आपसे की मांगता है कि जो सबके पास नहीं होती, सिर्फ उनके पास होती है जिन्होंने एंड नोट को परचेज किया हो। तो आपको वो की भी मैंने प्रोवाइड की है अलॉन्ग विद द एक रीडमी फाइल होगी उसके साथ, जिसमें आप नोटबुक पे की होगी। आप उसको एग्जैक्टली उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके पास एंड नोट डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एंड नोट सिखा दूं, आपको एंड नोट करके दिखा दूं, लेकिन आपके पास अगर एंड नोट होगा ही नहीं तो फायदा नहीं है हमारी इस सारी प्रैक्टिस का। इट विल बी यूजलेस। तो इसलिए मैंने एंड नोट आप सबके साथ शेयर कर दिया है। आई होप यू विल गेट इट सून। First of all, I want to ask or I want to share what is referencing. Referencing है क्या, जिसके लिए हम we are all are here to discuss referencing and EndNote. Basically, referencing is a practice of giving a proper credit. आप जब तक प्रॉपर क्रेडिट नहीं दोगे ना एक पर्टिकुलर रेफरेंस को, पर्टिकुलर ऑथर को जिसका काम है, जिसका ऑफिशियली ये वर्क है, एकेडमिक राइटिंग में इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव क्रेडिट, टू गिव प्रॉपर साइटेशन। आपको यू मस्ट नो व्हाट इज साइंटिफिक राइटिंग, रिसर्च क्या होती है, साइंटिफिक राइटिंग क्या होती है। तो बेसिकली simply we all are academicians or we all are researchers. If I say, if you are interested in researcher, obviously अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तभी आप यहाँ हो, आप एंड नोट यूज करना चाह रहे हो, आपको आप इसकी नो हाउ लेना चाह रहे हो। तो बेसिकली रिसर्च में होता क्या है कि आपको रिसर्च सिंपली, रिसर्च इज समथिंग दैट जनरेट्स न्यू नॉलेज। आप एक न्यू नॉलेज, न्यू आइडिया को गेन करने के लिए यू डू रिसर्च, ठीक है। अब रिसर्च को एक कम्युनिकेट करने के लिए, हाउ आई विल नो कि आपने क्या रिसर्च की है, तो आप उस रिसर्च को मेरे मुझ तक पहुंचाने के लिए यू विल डू साइंटिफिक राइटिंग। तो बेसिकली साइंटिफिक राइटिंग इज अ वे, साइंटिफिक राइटिंग इज अ टर्म जिसमें आप अपनी रिसर्च को इफेक्टिवली यू कैन कम्युनिकेट टू अदर्स, टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड वाइड। आप अपनी रिसर्च को कम्युनिकेट करने के लिए प्रेफर करते हो साइंटिफिक राइटिंग को। रिसर्च राइटिंग भी कह सकते हैं, साइंटिफिक राइटिंग भी कह सकते हैं, सिंपली राइटिंग भी कह सकते हैं। तो आप जो राइटअप कर रहे हैं ना, अपने रिसर्च को कम्युनिकेट करने के लिए, इन सिंपल वर्ड्स आई विल से कम्युनिकेशन, आप अपनी रिसर्च को कम्युनिकेट कर रहे हो। तो प्रॉपर क्लियर स्ट्रक्चर्ड और क्रेडिबल मैनर में इफ यू वांट टू कम्युनिकेट योर रिसर्च, उसमें रेफरेंसिंग प्लेज अ वाइटल रोल। If you see here, I have written in my presentation that let me share the laser. Research simply, what is research? Research creates knowledge. अब आपने रिसर्च कर ली, यू हैव डन अ वंडरफुल रिसर्च, बट यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट इट, तो इट्स अ यूजलेस प्रैक्टिस जो आपने ऑलरेडी की है। आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू विल कम्युनिकेट योर रिसर्च, अपनी नॉलेज को, अपनी रिसर्च को कम्युनिकेट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक राइटिंग। रेफरेंसिंग वैलिडेट्स एंड क्रेडिट्स योर नॉलेज। आप जब तक रेफरेंसिंग नहीं करोगे तो आपकी साइंटिफिक राइटिंग को आप वैलिडेट नहीं कर सकते, उसको एक्यूरेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली तो से वापस आ जाते हैं रेफरेंसिंग पे। तो रेफरेंसिंग रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च in academia, in scientific world, in research world, in scientist world, simply we can say you have to validate your research by doing proper referencing. referencing का मतलब सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकती हूँ कि आप एक पर्टिकुलर ऑथर को उसके काम का क्रेडिट दे रहे हो, आपने उससे इंफॉर्मेशन ली है, आपने उससे पढ़ा है, आपने उसको रीड किया है, आपने उसका डेटा अपने पेपर में, अपनी साइंटिफिक राइटिंग में यूज किया है। तो यू शुड हैव, यू मस्ट हैव टू गिव प्रॉपर क्रेडिट टू दैट पर्टिकुलर ऑथर जिसका काम था, जिसका आइडिया था, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं सिंपली रेफरेंसिंग। ओके, तो रेफरेंसिंग, व्हाई रेफरेंसिंग मैटर्स इन रिसर्च। सिंपली यू वांट टू एक्नॉलेज इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन। जिस पर्टिकुलर बंदे ने, आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ, आई डोंट नो दुआ एंड जुनेरा, आई So, जस्ट हेयर देयर names. If Dua has done something new, something intellectual, and Zunaira is wanted to acknowledge that work, के दुआ चाह रही है कि मैं अपने पेपर में बताऊं कि जुनैरा ने ये काम किया था,
और मैं उसको, आपने बता दिया कि जुनैरा ने ये काम किया था, बट आपने उसको साइट नहीं किया, आपने उसकी रेफरेंसिंग नहीं की, आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया। ठीक है, आप यू शुड एक्नॉलेज। दूसरा, अगर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, आप एक डिफरेंट पेपर्स को स्टडी कर रहे हो, तो लिटरेचर रिव्यू में रेफरेंसिंग प्ले अ वाइटल रोल। प्लेजरिज्म को प्रिवेंट करना, हम आ जाते हैं व्हाट प्लेजरिज्म क्या होती है, इसको डिस्कस करते हैं। क्रेडिबिलिटी स्ट्रेंथन अप होती है, जितनी अच्छी आपकी रेफरेंसिंग होगी, आपकी पेपर की वर्थ उतनी उतनी बढ़ जाती है। आप जो है ना, और ये बहुत इसेंशियल है। इट्स अ मैंडेटरी, जैसे हम स्कूल और कॉलेजेस में होता था ना, एक क्वेश्चन मैंडेटरी होता था कि आपको करना ही करना है, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, और ये इस कोई चॉइस नहीं, ये लाजमी करना है। तो रेफरेंसिंग इज मैंडेटरी फॉर यू ऑल। अगर आप यू आर डूइंग साइंटिफिक राइटिंग और आपने रेफरेंसिंग नहीं की, तो योर साइंटिफिक राइटिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिक, इन सिंपल वर्ड्स। इफ यू आर डूइंग पब्लिकेशन, थीसिस लिख रहे हो, साइनॉप्सिस लिख रहे हो, अपना कोई रिसर्च वर्क लिख रहे हो, कोई क्लास की असाइनमेंट है, आई प्रेफर, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो और आप कोई असाइनमेंट राइट अप कर रहे हो, तो आपको उस पे भी रेफरेंसेस प्रोवाइड करने होते हैं। अब रेफरेंसेस किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, रेफरेंसेस क्यों प्रोवाइड करने चाहिए, आई हैव डिस्कस हियर। टू अवॉइड प्लेजरिज्म, टू क्रेडिट द ऑथर, सबसे पहले हम उसकी इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हैं। ओरिजिनल सोर्स, सोर्स इज समथिंग, सोर्स इज वर्ड, जो कि यहाँ पे सोर्स का मतलब ये है, आपने जहां से वो पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर डेटा उठाया है, आपने, आपको जहां से वो इंफॉर्मेशन मिली है, दैट इज सोर्स, ओरिजिनल सोर्स। अपनी नॉलेज को और फर्दर इन्हांस करने के लिए यू आर गेटिंग, यू आर स्टडिंग पेपर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आपने एक आपका एक टॉपिक है इन्फ्लेमेशन, सूजन, पेन, आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया है, आप उस पर लिखना चाह रहे हो, बट आप उसके आपने उसके लिए पहले, सबसे पहले डेटा गैदर किया है। तो जब डेटा गैदर करते हो ना, तो उस डेटा को आपको एक्नॉलेज भी करना पड़ता है बाय डूइंग रेफरेंसिंग। देयर आर फ्यू टर्म्स जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगी बिफोर गोइंग टू हैंड्स ऑन एंड नोट, जो कि आपको पता होना चाहिए, दैट 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 आर बीइंग यूज्ड थ्रू आउट। ओके, सो आई हैव डिस्कस के सर्टिफिकेट्स जो है, मोस्टली मोस्टली स्टूडेंट जो है वो फार्मेसी के हैं, दैट्स ग्रेट, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, तो अच्छी बात है कि फार्मासिस्ट भी हैं यहाँ पे। citation and bibliography. So, anyone can tell me what is the difference between citation and bibliography? कोई बता दे मुझे एक, कि citation और bibliography में क्या फर्क है? I am reading the comments. I am reading the chat box. So, sorry. Or you can on your mic as well. आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप बता सकते हो कि रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी में क्या डिफरेंस है। आई विल नॉट माइंड। Okay, Anam just told me bibliography is a list of references. That good. From book is bibliography, citation from articles. No, that's somehow citation is the numbering and bibliography is the whole referencing. Okay, last पे सब references की compilation is bibliography. Atya, you're right. Okay, so most of the you know कि what is citation and bibliography. तो basically citation हम simply कह सकते हैं रिसर्च डॉक्यूमेंट, चाहे वो बुक हो, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, चाहे वो आर्टिकल हो, एनी एनीथिंग जो कि आपने एक बुक लिखा है और विद इन टेक्स्ट उसकी साइटेशन की है, यानी विद इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग की है, उसको हम कहते हैं साइटेशन। और जो लिस्ट, कंप्लीट सोर्स ऑफ लिस्ट, जो कि एट द एंड ऑफ पेपर होता है, एट द एंड ऑफ योर लास्ट पेज पे सिंपली एक रेफरेंसिंग लिस्ट होती है, जिसमें 1 2 3 करके नंबर्स करके रेफरेंसेस लिखे गए होते हैं, तो उसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ कि बिब्लियोग्राफी होता क्या है। मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि बिब्लियोग्राफी क्या होता है। एक मिनट, प्लीज स्टे विथ मी। अच्छा, ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट शो हो रहा होगा। इस ये डॉक्यूमेंट मैंने जस्ट अभी राइटअप स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा देती हूँ सिंपली। ये डॉक्यूमेंट क्या है कि यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है, इसमें कोई रेफरेंसिंग नहीं है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन बात करती है, इन्फ्लेमेशन एंड पेन प्रेजेंट्स टू ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंट सिम्टम्स encountered in wide spectrum of acute and chronic disease। इस लाइन की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। एक लाइन है, आई शुड हैव गिवन द रेफरेंस ऑफ दिस लाइन। मैंने बताया ही नहीं है कि मैंने रेफरेंस कहाँ से लिया है, मतलब मैंने बस सिंपली ऐसे लिख दिया है। तो क्या ये मेरी स्टडी साइंटिफिक राइटिंग कंसिडर की जाएगी? ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने सारी बात बहुत अच्छी लिखी है, बहुत सही लिखी है, लेकिन मैंने उसका कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ। तो दिस इज द डॉक्यूमेंट जो कि कम्प्लीटली अभी इसमें रेफरेंसेस नहीं है। ठीक है,
uh, आई एम जस्ट शेयरिंग माई इंटायर स्क्रीन सो यू विल नो कि मैं अभी किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे जाना चाह रही हूँ। दिस इज द डॉक्यूमेंट। ये एक रिसर्च पेपर है जो कि मैंने निकाला है। इस रिसर्च पेपर पे आप जो है ना, मैं अभी बेसिकली मैं पेन इंफॉर्मेशन और पेन पे काम करी थी, तो मैं आपको वही दिखा देती हूँ। ये एक रिसर्च पेपर है, ठीक है। ये दिस इज द, इफ यू आर सीइंग माय स्क्रीन, मैं इंट्रोडक्शन रीड करी हूँ। इंट्रोडक्शन में पहली लाइन की सेकंड लाइन पे एक रेफरेंस दिया गया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इफ यू आर सीइंग दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो ये नंबरिंग है विद इन द टेक्स्ट, इसको हम कहते हैं साइटेशन। ये स्टाइल्स के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी आपके साथ, आपको पता होगा मोस्टली को, लेकिन मैं उनके लिए बता रही हूँ डिटेल जिनको नहीं आइडिया। तो ये जो लास्ट में रेफरेंसेस दिए गए ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, दैट इज बिब्लियोग्राफी। दिस इज द बिब्लियोग्राफी। ये कंप्लीट रेफरेंसिंग लिस्ट जिसमें सारे रेफरेंसेस एक साथ लास्ट में प्रोवाइड किए गए हैं, ये बिब्लियोग्राफी है। और जो विद इन आपके पास है रेफरेंसेस किसी भी तरह से, किसी A1 2 3 बताया है, ABC करके बताया है, या ऑथर का नाम लिख के बताया है, तो क्लिक करके आपको विद इन आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये लाइन इस रेफरेंस से ली गई है। मैं इस रेफरेंस को जब क्लिक करूंगी तो मेरे पास लास्ट में वही रेफरेंस खुल जाएगा जो कि पहले नंबर पे है। तो दिस इज अ साइटेशन। इन टेक्स्ट साइटेशन एंड रेफरेंस बिब्लियोग्राफी आर द टू ऑफ द मोस्ट कॉमन टर्म्स जो कि दैट आर बीइंग यूज्ड, ठीक है। ओके, सो अब आ जाते हैं। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अगर डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं रेफरेंसिंग के। अगर ऑथर के नाम के साथ भी लिखा जा सकता है, नंबर 1 करके भी लिखा जा रहा है, ठीक है। और बिब्लियोग्राफी इन सिंपली अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज कंसल्टेड और रेफरेंस्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ रिसर्च वर्क, ठीक है। अब बिब्लियोग्राफी में होता क्या है, मैंने आपको बता दिया कि बिब्लियोग्राफी लास्ट में डॉक्यूमेंट के लास्ट में एक रेफरेंस लिस्ट होती है जिसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। उसमें हमें क्या क्या मिलता है, उस लास्ट लिस्ट में उस पर्टिकुलर रेफरेंस का हमें ऑथर मिलता है, टाइटल मिलता है उस पर्टिकुलर पेपर का जिसका हमने रेफरेंस लिया है, जहाँ से हमने वो डेटा लिया है, टाइटल ऑफ वर्क, जर्नल का नाम, किस साल में पब्लिश हुआ था, उसका वॉल्यूम कौन सा है, उसका पेज कौन सा है, और उसका DOI क्या है, मतलब वो उसकी कंप्लीट कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फ्रॉम द बिब्लियोग्राफी। तो इफ आई एम सेइंग अबाउट बिब्लियोग्राफी, तो बिब्लियोग्राफी में आपको सब सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और साइटेशन आपको टेक्स्ट के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि ये रेफरेंस जो है ना हमारे पास, यहाँ से ये रेफरेंस, इसकी रेफरेंस, बोथ आर इम्पोर्टेंट। अगर आपने रेफरेंसिंग की है ना, तो आपको साइटेशन भी आपको देनी है और आपको बिब्लियोग्राफी भी देनी है, तभी आपकी जाके रेफरेंसिंग कंप्लीट होगी। विदाउट बोथ ऑफ देम, किसी में इनमें से कोई एक बात भी की है ना अगर आपने, इफ यू हैव डन साइटेशन, आपने साइटेशन तो किया लेकिन लास्ट में आपने रेफरेंसिंग की लिस्ट प्रोवाइड नहीं की, तो योर पेपर योर रेफरेंसिंग इज इनकम्प्लीट। फॉर अ कंप्लीट रेफरेंसिंग यू मस्ट हैव डन बोथ ऑफ द थिंग्स, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ओके, सो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, दीज आर द फ्यू टर्म्स जो कि आपको पता होनी चाहिए बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। प्लेजरिज्म इज प्रेजेंटिंग, व्हाट इज प्लेजरिज्म? प्लेजरिज्म है एक टर्म, सेल्फ प्लेजरिज्म है, पैराफ्रेसिंग है। आप लोग रिसर्चर्स हो, यू मस्ट नो द प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म भी कैसे, कॉपी और पेस्टिंग। आई हैव कॉपीड समवन्स वर्क विदाउट गिविंग देम प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, विदाउट गिविंग देम प्रॉपर साइटेशन। आपने किसी का काम लिखा है, आपने उसको साइट नहीं किया, आपने उसको रेफरेंसिंग उसकी नहीं की, तो डेट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। अच्छा, एक मुझे बात बताएं, आई डोंट नो कि मुझे ये इस तरह से आपसे ओपन क्वेश्चन पूछने हैं, आप अलाउड हो टू आंसर बाय ओपनिंग योर माइक। बट प्लेजरिज्म और एक चीज होती है प्लेजरिज्म, दूसरी होती है पैराफ्रेसिंग। मैंने पेपर लिखा है, मैंने कम्प्लीटली एक आर्टिकल खोला है और उसको मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है, और आगे मैंने रेफरेंस भी दे दिया है, तो क्या मैंने सही किया? एम आई डूइंग राइट? मैंने क्या किया, मैं अब यही कह रही हूँ ना, आप उसको प्रॉपर क्रेडिट दे दो, उसका काम कॉपी कर लो बट उसको क्रेडिट दे दो। तो ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल? नो, राइट, इट इज नॉट पॉसिबल। प्लेजरिज्म इज अ राइट आंसर। अली आंसर दैट चीटिंग द वर्क ऑफ अनदर प्लेज। देखो, हमें वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट इज प्लेजरिज्म, लेकिन प्लेजरिज्म इसको भी कंसिडर किया जाता है कि आपने किसी और का डेटा उठाया, आपने उसकी पैराफ्रेसिंग की, लाइक उस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपने वर्ड्स में लिख दिया, या उसको मीनिंग सेम है बट आपने उसका पैराफ्रेस कर दिया। पैराफ्रेस का मतलब है कि मतलब बात का सेम है
बट आपने उसकी वर्डिंग चेंज कर दी, आपने उसकी कॉपी पेस्टिंग नहीं की, उसको हम कहते हैं पैराफ्रेसिंग। लेकिन पैराफ्रेसिंग भी में भी आपको रेफरेंस देना होता है। आपने एक जब एक पर्टिकुलर आर्टिकल से इफ यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन, यू कांट कॉपी दैट पर्टिकुलर लाइन। आपने उस लाइन को लिया है, आपने उस लाइन को लिया है और आपने उसको साइटेशन कर दी है, तो आपके पास अगर जब चेक होगा ना, तो 100% प्लेजरिज्म आएगा, तभी प्लेजरिज्म शो होगा कि इस बंदे ने पूरा काम कॉपी किया। आप कॉपी नहीं कर सकते, यू कांट कॉपी समवन एल्स वर्क। आप सिंपली क्या करोगे, आप उसको अपनी वर्डिंग्स में लिखोगे, जिसको हम पैराफ्रेसिंग कहते हैं, और फिर भी उसको साइट भी करोगे। कि मुझे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग कि नॉजिल एंड वॉमिटिंग, उल्टी वॉमिटिंग, सिंपली सिंपल रखती हूँ बिकॉज नॉट एवरीवन इज अ साइंस स्टूडेंट हियर। वॉमिटिंग की बात करें कि वॉमिटिंग जो है ना वर्ल्ड वाइड जो है ना कॉमन सिम्टम है कैंसर का। कैंसर की मेडिकेशन जब आप लेते हो, एंटी कैंसरस एजेंट्स जब आप लेते हो, तो उसका एक साइड इफेक्ट है कि आपको वॉमिटिंग होती है, आपका दिल खराब होता है, नौजिया होता है, वॉमिटिंग होता है। ये बात मैं कर रही हूँ, मैंने इसको अपनी वर्डिंग में लिख दिया, मुझे क्योंकि पता है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मुझे पता है कि नौजिया एंड वॉमिटिंग इज कॉज्ड बाय कीमोथेरेपी। ठीक है, इज यूजली साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। मैंने ये बात लिख दी, खुद से लिखी है, लेकिन ये बात मैंने कहीं से तो पढ़ी होगी ना। मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे पता था, मुझे कहाँ से पता चला, मुझे कहाँ उसकी एग्जैक्ट सोर्स क्या है। तो उस सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सोर्स को साइट करना पड़ेगा मुझे। आई हैव टू साइट दैट पर्टिकुलर सोर्स। मैं उसको एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मुझे पर्टिकुलर पेपर को स्टडी करने से मिली है, तो मैं उसको साइट करती हूँ। जब इस कॉल्ड पैराफ्रेज along with proper citation। ठीक है, आपने उसका मीनिंग प्रिजर्व रखी, उसकी लाइन चेंज कर दी और आपने साइटेशन कर दी, तो ये करना होता है। प्लेजरिज्म, ओके, आंसर अली सेड प्लेजरिज्म रिमूवर्स आर बीइंग यूज्ड। यस, प्लेजरिज्म रिमूवर करते क्या है, आपने एक पर्टिकुलर बंदे का काम कॉपी करके उसको कॉपी कर दिया, उसकी साइटेशन तो आप कर ही रहे हो ऑब्वियसली। आपने उसको प्लेजरिज्म जो टूल्स आ रहे हैं हमारे पास, आपने उस पर डाला, उसको ह्यूमनाइज कर दिया बेसिकली, उसको उसकी लाइन चेंज कर दी। करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बट आई डोंट प्रैक्टिस दिस एंड आई डोंट इंकरेज दिस प्रैक्टिस। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो टूल्स ह्यूमनाइज कर देते हैं उस डेटा को, और जो उसकी एग्जैक्ट मीनिंग जो प्रिजर्व करनी होती है, ओरिजिनल मीनिंग होती है, उस कहीं ना कहीं उसको डाइवर्ट कर देते हैं, बात का मतलब ही जाता है। लाइक हाँ, यू कैन यूज, बट आई डोंट प्रेफर इट। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं उसको यूज करती हूँ ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नोजिया और वॉमिटिंग इज साइड इफेक्ट ऑफ कैंसर, कीमोथेरेपी, सॉरी, कीमोथेरेपी का एक साइड इफेक्ट है नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, अब मैंने इसको प्लेजिज्म टूल पे डाल दिया कि इसको थोड़ा सा रीराइट कर दे या इसको थोड़ा सा पैराफ्रेज कर दे ताकि प्लेजिज्म रिमूव हो जाए। वो ये बोले कीमोथेरेपी जो है ना वो कीमोथेरेपी नोजिया एंड वॉमिटिंग कीमोथेरेपी कराता है। इन दोनों लाइंस में क्या फर्क है, कीमोथेरेपी नोजिया एंड कीमोथेरेपी, नोजिया एंड वॉमिटिंग कीमोथेरेपी करवाता है। नो, नोजिया एंड वॉमिटिंग कीमोथेरेपी नहीं करवाता है, कीमोथेरेपी नोजिया एंड वॉमिटिंग कराता है। अ, ये क्या होता है, प्लेजरिज्म रिमूवर टूल्स जो होते हैं वो इनकी एग्जैक्ट मीनिंग होती है ना, उसको चेंज कर देते हैं, उसको डाइवर्ट कर देते हैं उसका। ये छोटी सी लाइन की बात करें, अगर आप एक बहुत बड़ा पैराग्राफ डाल के भी देखोगे ना, पूरी लाइन की मीनिंग चेंज कर देंगे, जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसको प्रिजर्व नहीं रहने देंगे। आई डोंट इंकरेज यू ऑल कि आप प्लेजरिज्म रिमूवर यूज करो, इससे बेटर यही है कि आप ने अगर एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया है, आप उसको अपनी वर्डिंग्स में लिख दो, आपको मतलब समझ में आ गया, पहले आप अंडरस्टैंड करो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन, आप उसको खुद से लिखो, कुछ अपने वर्ड्स में लिखो, थोड़ा सा सिनोनिम्स यूज कर लो, थोड़ा सा एक्टिव को पैसिव में कर दो, ग्रामर को थोड़ा सा चेंज कर दो, तो आपका जो है ना वो ह्यूमनाइज हो जाएगा, पैराफ्रेसिंग हो जाएगी। ठीक है, उसको बस रीराइट कर रहे हो, आपको पता है उसको इन्फॉर्मेशन को, यू आर रीराइटिंग द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सेल्फ प्लेजरिज्म, अनदर टर्म इज सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म ये होता है कि मैं अपने ही काम दोबारा यूज कर रही हूँ, और अपने काम को मैंने काम किया है, आई हैव डन अ रिसर्च फॉर, मैंने उस रिसर्च को पब्लिश करवा दिया, एक वेल रेप्यूटेड जर्नल में वो पब्लिश है ऑलरेडी। और मैं अब दूसरा काम कर रही हूँ, तो मैंने उस काम में भी अपने पुराने काम का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दी, बट मैंने उसको साइट नहीं किया, तो वो भी सेल्फ प्लेजरिज्म कंसिडर की जाती है कि मैंने अपने ही काम को दोबारा से यूज किया है, अगेन आई हैव री यूज्ड माई वर्क विदाउट प्रॉपर साइटेशन। मैं अपने काम को भी साइट करूंगी कि मैंने मेरा ये पर्टिकुलर पेपर है, इसमें मैंने ये काम किया था, मैंने ये मतलब आपने उसमें भी साइटेशन करनी है। यू कांट यूज योर पब्लिश्ड वर्क विदाउट साइटेशन। जब आपका काम पब्लिश्ड हो गया, आप साइटेशन के बिना उसको कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको सेल्फ प्लेजरिज्म को भी अवॉइड करना होता है। पैराफ्रेजिंग हम समझ आ चुकी है आप लोगों को।
वी हैव डिस्कस्ड पैराफ्रेजिंग, वी हैव डिस्कस्ड सेल्फ प्लेजरिज्म एंड प्लेजरिज्म। ना एक होती है डायरेक्ट प्लेजरिज्म, ये वही बात है कॉपी पेस्टिंग जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब आपने सिंपली पूरी सोर्स वर्ड टू वर्ड डॉक्यूमेंट उसको कॉपी पेस्ट किया है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इवन ए स्मॉल कॉपीड सेक्शंस, छोटा सा अगर एक लाइन, 3-4 वर्ड्स की भी अगर एक लाइन है ना, उसको भी अगर आपने कॉपी किया है ना, तो वो भी आपकी डायरेक्ट प्लेजरिज्म आ रही है। आप कॉपी कर ही नहीं सकते, यू कांट कॉपी, यू हैव टू साइट और रीराइट द पर्टिकुलर लाइन। ओके। अच्छा, एक साइटेशन पैडिंग एक टर्म है, हैव यू हेard अबाउट साइटेशन पैडिंग? रेफरेंसिंग में जाने से पहले मैं रेफरेंसिंग से रिलेटेड जितनी टर्म्स जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होती है, जो आपको आपको पता होनी चाहिए, मैं वो बस आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही थी। तो उसके बाद वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है। साइटेशन एडिंग इज द अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ एडिंग अननेसेसरी और इररेलेवेंट रेफरेंसेस। अच्छा, अच्छा, मैंने ये लिखा नहीं हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ ताकि एक डिस्कशन है, ओपन डिस्कशन। होता क्या है कि एक साइंस की दुनिया का एक रूल है कि मैं क्यों कर रही हूँ रिसर्च, व्हाई आई एम डूइंग दिस। आई एम ए रिसर्चर, लेकिन मेरी ये एक एकेडमिक रिक्वायरमेंट है कि आई हैव टू डू सम रिसर्च और आई हैव टू पब्लिश द रिसर्च इन गुड जर्नल्स। ये प्रमोशंस में कुछ लोगों के तो ये भी क्वेश्चन होंगे कि हम रिसर्च करते ही क्यों हैं। ये एक सेपरेट टॉपिक है कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, हम रिसर्च होती क्या है, करनी क्यों चाहिए, और उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं, होपफुली आप सबको पता हो। लेकिन बेसिकली एकेडमिकली रिसर्च की एक रिक्वायरमेंट है कि आपको पब्लिकेशन करनी है, आपको अच्छी कैटेगरी में पब्लिश करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय कैटेगरी? कैटेगरी दो तरह से होती है, एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है, इम्पैक्ट फैक्टर वाइज कैटेगरी होती है। दूसरा HGRS है, जो हमारा एक पाकिस्तानी एक सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग आपको कुछ कैटेगरीज डिजाइन की गई हैं, डेट इज WXYZ। डब्ल्यू कैटेगरी इज कंसिडर एज अ मोस्ट प्रिवेलेंट, और जो मोस्ट, जो हम कह सकते हैं सबसे अच्छी जो कैटेगरी होती है ना, बेस्ट कैटेगरी, दैट इज डब्ल्यू कैटेगरी, जो कि सबसे ज्यादा एक अच्छी कैटेगरी में आती है कि ये गुड एक्सीलेंट कैटेगरी है। उसके बाद एक्स आता है, देन वाई, जेड इज कंसिडर लीस्ट और जीरो। जेड में आप पब्लिकेशन करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता। डब्ल्यू कैटेगरी टॉप मोस्ट कैटेगरी है। ठीक है। अभी कैटेगरीज की बात मैं क्यों कर रही हूँ? मैं ये बात कर रही हूँ कि जब मैं एज अ रिसर्चर, मैंने कुछ पब्लिकेशन की हैं मेरी, मुझे रिसर्च में आया हुआ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आई हैव डन माई MPhil इन 2023, और अब मैं PhD कर रही हूँ, आई एम डूइंग PhD। मेरे अराउंड 5 to 6 पब्लिकेशंस हैं, अच्छी रेप्यूटेबल पब्लिकेशंस हैं, 5 to 6। आप यू कैन सर्च मी ऑन गूगल स्कॉलर एज वेल। गूगल स्कॉलर पे जो हमारे रिसर्च प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें भी आपको थोड़ी बहुत मेरी रिसर्चेस मिल जाएंगी। तो बेसिकली मैं ये क्यों कर रही हूँ, व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं और भी पब्लिकेशंस करना चाहूंगी और अच्छी पब्लिकेशंस करना चाहूंगी, अच्छी से मतलब डब्ल्यू कैटेगरी में, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में। आपको ये एकेडमिकली रिक्वायरमेंट क्यों है कि आप जब एक अच्छी एक पब्लिकेशन करते हो ना, और अच्छी एक मतलब मेरा पेपर मैंने लिखा है और आप मेरे पेपर को साइट कर रहे हो, आप मेरे पेपर को यूज करके अपना काम कर रहे हो, उसको कहते हैं साइटेशंस। कि मैंने आपने जब मेरा पेपर को साइट किया है ना, आपने मेरे पेपर को साइट किया है, तो वो मुझे एक प्लस पॉइंट मिलता है कि मेरे काम को इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं और अपने पेपर में उसको रेफरेंस भी दे रहे हो उसका। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट पॉइंट कंसिडर किया जाता है फॉर अ रिसर्चर। आपके पेपर को साइटेशंस मिल रही हैं, ये बात समझ में आ रही? साइटेशंस मिलने का कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ क्योंकि उससे आ जाएगा आपके पास एक साइटेशन पैडिंग। साइटेशन पैडिंग होता क्या है कि आप ना अपने जर्नल की साइटेशंस बढ़ाने के लिए, अपने पेपर की साइटेशंस को बढ़ाने के लिए अननेसेसरी रेलेवेंट जगह पे मेरे पेपर को यूज कर रहे हो। मैं फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जुनैरा को जानती हूँ। डॉक्टर जुनैरा अपना कोई काम कर रही है रिसर्च का, मैंने डॉक्टर जुनैरा से रिक्वेस्ट की कि यार ये मेरा पेपर है, आप इसको ना अपने जर्नल में अपने जो आप काम कर रही हैं उसमें इसको लाजमी साइट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, डॉक्टर जुनैरा विल साइट माई वर्क। ठीक है। और मुझे क्या होगा, एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि देखो मेरा पेपर जो है ना, इसकी इतनी साइटेशन हो गई हैं, साइटेशन शो हो रही होती हैं कि इतनी साइटेशन हो गई हैं, यानी इतने दफा दूसरे लोगों ने इसको यूज किया है। आप जितनी बार मर्जी मेरे पेपर को पढ़ लो, अनटिल आपने उसको साइट नहीं किया है ना, अपने रेफरेंस, आप उसकी रेफरेंसिंग नहीं की अपने पेपर में, तब तक वो उसका मुझे फायदा नहीं मिलेगा। मुझे फायदा मिलता तब है जब आप मेरे पेपर को साइट करते हो। प्लस पॉइंट होता है ये। जुनैरा को, दुआ को, जितने ऑथर्स को, जो भी ऑथर्स है हमारे पास, उनको मैंने जिसमें है यहाँ पे तकरीबन है, मेरे जो क्लास है, मैंने इनका क्लास, आप सब ये लें मेरे पेपर, ये पब्लिश ऐसे जर्नल में पब्लिश है। आप एक काम करें, आप जब भी अपना कोई काम करेंगे ना, इसकी साइटेशन लाजमी आपने करनी है अपने पेपर में। अपने पेपर में इस पेपर को यूज करना है कि भाई ये पेपर में मैंने कोई भी लाइन, आपने कोई भी लाइन लिखी, रेफरेंस डाल दिया है, तो साइटेशन पैडिंग,
यूज नहीं है उसका, उसकी रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी बट यू हैव यूज्ड माय रेफरेंस जस्ट टू मतलब मुझे कुछ करने के लिए आपने क्या किया, मेरा रेफरेंस यूज कर दिया। अननेसेसरी इररेलेवेंट रेफरेंस आप जब यूज करते हो तो उसको हम कहते हैं साइटेशन पैडिंग। और ये मोस्टली करते हैं कि आर्टिफिशियली और अपने पर्सनल पीआर्स पे ये यूज किया जाता है ताकि आपकी नंबर ऑफ साइटेशन बढ़ जाए। और जब मेरी नंबर ऑफ साइटेशन बढ़ जाएंगी, उससे ये होगा कि मेरा साइटेशन काउंट बढ़ रहा है, मेरे रिव्यूज मुझसे इंप्रेस हो रहे हैं कि वाह भाई इसके पेपर की तो इतनी साइटेशन है। और जो है ना, जर्नल का मैट्रिक्स भी बढ़ रहा है कि जिस जर्नल में मेरा पेपर था वो जर्नल वाले भी खुश हो रहे हैं। Be patient, everyone. Hope so, Dr. Sabha have a net issue. It will resolve in some times. Be patient, everyone. Have patience. Everyone, please type their questions and queries in the chat box. Plagiarism remover, different plagiarism remover are used. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक, सॉरी। Walaikum assalam, totally okay, ma'am. लाइट चली गई थी, सो आई जस्ट ऑन माय बैटरी। ओके, सो
Okay, so where were we? We were discussing about plagiarism and sorry, I was just discussing citation padding. तो मैं ये कह रही थी कि साइटेशन पैडिंग जो है वो अनएथिकल प्रैक्टिस है कि मैं अननेसेसरीली और इररेलेवेंट रेफरेंसेस को अपने रिसर्च पेपर में इंक्लूड करूँ या करवाऊँ। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मेरा इंप्रेशन बढ़ता है कि मेरी साइटेशन जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है ना तो मेरा इंप्रेशन बढ़ता है। अनएथिकल प्रैक्टिस, मैं इररेलेवेंट या अननेसेसरी रेफरेंसेस ऐड नहीं कर सकती किसी भी पेपर में, अपने पेपर में या आपके पेपर में, किसी भी पेपर में। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल यू आर इफ यू आर यूजिंग अननेसेसरी और इररेलेवेंट रेफरेंसेस। Why it is wrong? It misleads readers or reduces scientific integrity. Obviously, it's a wrong practice. Simply हो क्या रहा है? It's a wrong practice. Simply हो क्या रहा है कि आप मैंने simply लिखा है कि ये लाइन मैंने ये लाइन एक पर्टिकुलर जगह से ली है, बट आई वॉन्ट टेल द रीडर्स कि ये लाइन मैंने कहाँ से ली है। और वो सिंपली क्या करेंगे, वो सोच रहे होंगे ये इस रेफरेंस को मैं इस clip को मैं रीड करूंगा तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमने सिंपली किया होता है कि हमने इररेलेवेंट रेफरेंसिंग यूज की हुई होती है। ठीक है। अच्छा, एक बात होती है प्रीडेटरी जर्नल्स की। सो प्रीडेटरी का कौन मुझे बता सकता है? डॉक्टर सनेरा, मेरी स्लाइड शेयर हो रही है ना? जी जी, हो रही है। ओके। सो मैं डिस्कस कर रही हूँ प्रीडेटरी जर्नल का। तो बेसिकली प्रीडेटरी जर्नल ये होते हैं कि वो नॉन ऑथेंटिक जर्नल्स होते हैं। सिंपली वी कैन सिंपली से कि जब भी कोई आप पब्लिकेशन करवाते हो, आपको पब्लिकेशन आपका पेपर पब्लिश होता है, रिसर्च पब्लिश होती है, तो वो पीयर रिव्यूड होती है या वो उसका रिव्यू होता है। ठीक है, पीयर रिव्यू होता है। अब सिंपली होता ये है कि कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जो कि फीस आपसे ले लेते हैं लेकिन आपके पेपर को रिव्यू नहीं करवाते, और वो उसके में जो मिस्टेक्स होती हैं या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, जो उसमें इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन होती है या जो विदाउट रेफरेंसिंग होती है, वो पब्लिश हो जाता है। यू मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई प्रीडेटरी जर्नल्स। आप अपना काम कभी भी ऐसे जर्नल से नहीं पब्लिश करवा सकते जो कि किसी भी कैटेगरी में लाई नहीं करता है और जो कि आपका पेपर पीयर रिव्यू नहीं है, क्योंकि वर्क यूज किया गया है बट विदाउट। ओके, आवाज सही नहीं आ रही है। ओके, मैं थोड़ा सा लाउड हो जाती हूँ एक्चुअली। शायद हो सकता है कि मेरा गला खराब है तो उसकी वजह से शायद आप लोगों को टोन में प्रॉब्लम हो रही है। बट थैंक यू रीबा फॉर लेटिंग मी नो। मैं थोड़ा सा, मुझे बता दीजिएगा अभी भी लो हो रही हो। प्रीडेटरी जर्नल्स बेसिकली आर दोज जर्नल्स सिंपली जो कि इररेलीवेंट विदाउट पीयर रिव्यूड आपका काम पब्लिश करवा देते, और जो है ना, आप उसको एज अ रेफरेंस सोर्स यूज करें, तो आपको ये होना चाहिए। ठीक। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको प्रॉपर क्रेडिट देना है ऑल सोर्सेज को यू हैव यूज। आपने हर लाइन के बाद, हर पैराग्राफ के बाद आपको उसको प्रॉपरली साइट करना है, आपको प्रॉपरली क्रेडिट देना है उस सोर्स का। ठीक है, टेबल्स हो, इमेजेस हो, मेथड्स हो, कोई भी डेटा आपने लिया है, कोई भी आइडिया लिया है, तो आपको सिंपली उसकी साइटेशंस करनी है, यानी उसकी रेफरेंसिंग करनी है। आपको मैं ये बता चुकी हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसिंग, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अगर मैं साइटेशन का वर्ड यूज कर रही हूँ ना तो इसका मतलब ये है कि मैं रेफरेंसिंग की बात कर रही हूँ। रेफरेंसिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो साइटेशन को यू कैन से रेफरेंसिंग, यू कैन कॉल रेफरेंस क्योंकि ये उसी का एक पार्ट है। साइटेशन विद इन द टेक्स्ट, आपने बताना है कि आपने अगर एक आइडिया लिया है तो वो कहाँ से लिया है, अगर ये डेटा उठाया है वो कहाँ से लिया है, इमेज कहाँ से आई है। अगर एक तो आपको ये भी फुट नोट पे बताना पड़ेगा कि आपने ये इमेज यूज की है। ठीक। प्लेजरिज्म को और सेल्फ प्लेजरिज्म को यू हैव टू अवॉइड। ऑलराइट। आप कैसे अवॉइड करोगे? सिंपली आप उसको उसको साइड करोगे। अगर मेरा अपना काम है जो मैं 2 साल पहले किया था और मैं अभी दोबारा उसकी बात कर रही हूँ, तो आई हैव टू गिव रेफरेंस टू दैट माई वर्क। ठीक है, टू अवॉइड सेल्फ प्लेजरिज्म। सोर्स को एक्यूरेटली आपने रिप्रेजेंट करना है, और ट्रांस इसी इसकी वजह से क्या होगा, आपकी रिसर्च में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। डायरेक्ट प्लेजिज्म जो है, ये कॉमन इशू आता है कि हम क्या करते हैं, हम कॉपी पेस्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, पैराफ्रेसिंग तो कर रहे हैं लेकिन साइटेशन नहीं करे, तो दिस इज अ सम कॉमन एथिकल इशू। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि यू हैव टू साइट एंड ऑल्सो पैराफ्राइज। यू कांट यूज वर्क, कॉपी पेस्टेड वर्क विथ साइटेशन, और यू कांट यूज
पैराफ्रेसिंग विदाउट साइटेशन। तो आपने दोनों चीजें एक साथ यूज करनी है, आपने पैराफ्रेसिंग भी करनी है और आपने साइटेशन भी करनी है। अगर तुमने एक काम किया है आप, इट्स इनकम्प्लीट वर्क। आपने साइटेशन कर ली लेकिन कॉपी पेस्ट किया है, आपने पैराफ्रेसिंग तो कर ली, कॉपी पेस्ट नहीं किया, पैराफ्रेसिंग तो कर ली लेकिन आपने साइटेशन नहीं की उसकी, तो दैट इज इनकम्प्लीट, ठीक है, और अनएथिकल। की बात हम कर चुके हैं। इनकम्प्लीट साइटेशन, अब जब आप साइटेशन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इनकम्प्लीट एक्यूरेट साइटेशन का क्या मतलब है। साइटेशन पैडिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, अनएथिकली, रेलेवेंट और नॉन इम्पोर्टेंट इनकम्प्लीट रेफरेंस को आप यूज कर रहे हो जस्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ साइटेशन ऑफ पर्टिकुलर वर्क। आपने रीड भी नहीं किया आपने, लेकिन आपने उसको साइड कर दिया है कि हो सकता है इसी के अंदर ये बात लिखी गई हो। ऐसा नहीं होता है, आपको प्रॉपरली उस पर्टिकुलर पेपर को रीड करना होगा और फिर आप उसको साइड कर सकते हो कि हाँ ये बात इसमें लिखी हुई है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, आपको ये बात माइंड में आ रही होगी कि मिस मैं एक काम लिख कर रहा हूँ और इतने सारे जो है ना उसमें मुझे उसके लिए 100 पेपर्स पढ़ो पूरे complete। मैं आपसे मैं आपसे ये एक आपको टिप देना चाह रही हूँ कि आपको कंप्लीट अगर रीड नहीं करना चाह रहे, आप सब सिर्फ उसका एब्स्ट्रैक्ट, उसकी कॉन्क्लूजन और उसकी मेथोडोलॉजी ये आपको रीड करने चाहिए, ताकि आपको इससे आइडिया हो जाए कि ये काम कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था और उसका रिजल्ट क्या आया था, ठीक है। अगर आप एक एक लाइन नहीं भी पढ़ना चाहे तो कुछ ऐसी हेडिंग्स होती हैं जिनको आप अगर पढ़ लोगे ना, आपको आपको प्रॉपरली जो है ना वो पेपर समझ में आ जाएगा। और आजकल तो एआई टूल्स इतने यूज हो रहे हैं, मैं इंकरेज करूंगी आपको कि आप एआई टूल्स को भी यूज कर सकते हो आप पेपर को रीड करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने पेपर लिखने के लिए एआई यूज करो, आप दूसरे पेपर को पढ़ने के लिए यू कैन यूज एआई। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप अपने पेपर को पूरे पेपर को जो आपने रीड करना है उसका आप चैट जीपीटी हो गया, नोटबुक हो गया, आप जो भी सॉफ्टवेयर को आपको देना चाह रहे हो पूरा पेपर उनको दे और उसको कहें कि इसकी समरी बना दो मुझे। जब आप समरी बनवाएंगे ना तो समरी को आप पढ़ना आपके लिए इजी होगा एज कम्पेयर टू द रीडिंग, एज कम्पेयर टू रीडिंग द होल पेपर। ऑल राइट, कैन वी साइट वन सेंटेंस विथ मोर देन वन नंबर लाइक इट्स श्योर मैरो, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम एक रेफरेंस में मैं आपको सिखाऊंगी मैं आपको कि आपने एक सेंटेंस देखे। ये बात वही वाली बात है ना कि आप एक सेंटेंस एक जगह से ले रहे हो, आप एक से आपने कॉन्सेप्ट लिखा है ना, आप उस डायरेक्ट लाइन टू लाइन बिल्कुल लाइन से लिख के कॉपी पेस्ट करके आप आपने कॉन्सेप्ट लिया है, आपने कितनी वर्डिंग में लिखा है, तो वो कॉन्सेप्ट आप एक साथ दो से चार पेपर का भी लिख सकते हो। आप सिर्फ दो नहीं, आप चार पांच छह, आप आप एक से ज्यादा पेपर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पांच छह, जितना आपको लगता है कि मैंने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता है, फिर इम्पैक्ट अच्छा होता है। तो आपने लिखा है नोजिया एंड वॉमिटिंग इज कॉज्ड बाय कीमोथेरेपी। सॉरी टू इंटरप्ट यू। सॉरी जी। आपकी वॉइस थोड़ी अटक रही है, फिर आ रही है, फिर अटक रही है, फिर आ रही है, ऐसे हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं मेरा इंटरनेट तो बिल्कुल ठीक चल रहा आई थिंक इट्स अ नेट इशू। है, बट अभी मेरा इंटरनेट पूरा कंप्लीट सिग्नल आ रहे हैं। अच्छा चलें, मैं देखती हूँ, अगर अभी दोबारा ऐसा होता है तो आप दोबारा से इंटरप्ट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। ठीक है मैम। अ, मैं बात करी थी मारूफ ने, मारूफ आस्क्ड के आप क्या एक से ज्यादा साइटेशन यूज कर सकते हो, तो यस यू कैन यूज मोर देन वन साइटेशन। मैम अ ग्रेट प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग आंसर अली, किस किस बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग? मेरी वॉइस की वजह से नहीं, आप read करने की वजह से? सॉरी आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड योर मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर कमेंट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी आवाज क्यों प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि मैं लाउड भी हूँ और मेरा जो है सिग्नल्स भी फुल आ रहे हैं। इट्स बैड। अब ठीक है, जुनैरा अब सही है? जी जी मैम, आप सही है, आप कंटिन्यू कर रखें। जी, थैंक यू। ओके, मैं ये कह रही थी कि आप एक से ज्यादा अगर रेफरेंस एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पे यूज कर रहे हो ना, तो तो आप क्या करोगे, आप ना पेपर उस पर्टिकुलर लाइन की, उस पर्टिकुलर वर्ड की जो है ना मीनिंग को वो कर लेते हो और ज्यादा एम्फसाइज कर देते हो और इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है पेपर की, ठीक है। तो दिखाऊंगी आपको। उसके अलावा हम डिस्कस कर रहे थे साइटेशन पहले हमने डिस्कस कर ली है, रिड्यूटरी अनरिलायबल सोर्स को भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म।
वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, जिसमें डायरेक्ट प्लेजरिज्म आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट प्लेजरिज्म है, मोज़ेक प्लेजरिज्म है, सेल्फ, बेटा, एक्सीडेंटल। हम हमारे कि इसका मतलब क्या, डायरेक्ट प्लेजरिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं। मोज़ेक प्लेजरिज्म का ये मतलब होता है कि आपने बहुत चालाकी करते हैं, हम लोग ना रिसर्चर्स बड़े चालाक होते हैं, हम सोचते हैं कि ना हम डिफरेंट जो है, हम डिफरेंट सोर्सेज को कॉपी पेस्ट करेंगे, एक वहां से उठाया कॉपी किया, वहां से उठाया डिफरेंट लाइन से हमने कॉपी पेस्टिंग की है, तो हम सिंपली उसको जो है एक लाइन नेक्स्ट स्टेप बना देंगे तो क्लियरिटी नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता है, अगर आपने एक जगह से आधी लाइन एक जगह से उठाई है, आधी लाइन दूसरी जगह से उठाई है, उसको मिला के लिख दिया है, तो दोनों लाइन प्लेजिज्म शो करेंगे, ठीक है। तो उसका हम मोज़ेक प्लेजिज्म का टर्म देते हैं, मोज़ेक प्लेजिज्म, ठीक है। कि जो है ना दो या तीन अलग अलग जगह से आपने कॉपी पेस्ट किया है और कॉपी पेस्ट करके उसको कंबाइन कर दिया, अपनी तरफ से आप लोगों ने चालाकी की कि अब नहीं शो होगी, तो ऐसा नहीं होता। जितना टाइम हम कॉपी पेस्टिंग में लगाते हैं उतना टाइम हम खुद से लिखने में भी लगा सकते हैं, ठीक है। हम उसको पैराफ्रेज करके उसकी प्रॉपर साइटेशन करेंगे तो हमारा जो है ना क्रेडिटबिलिटी अपने काम की बढ़ जाती है। ऑल राइट, उसके बाद आ जाता है एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म, मतलब आपने गलत जो है ना जगह पे रेफरेंसिंग कर दी है। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए जो बेस्ट टेक्निक है, डेट इज साइटेशन। और हम देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ साइटेशन। नंबर वन इज मैनुअल रेफरेंसिंग, नंबर टू इज थ्रू सॉफ्टवेयर। आप मुझे बताएं कि मैनुअल साइटेशन रेफरेंसिंग का क्या मतलब है। मैनुअल रेफरेंसिंग का मतलब होता है आप एक काम को साइट कर रहे हो, आप एक काम को लिख रहे हो, सिर्फ उसके रेफरेंस खुद बना रहे हो। रेफरेंस में क्या क्या होना चाहिए एक रेफरेंस में? मैंने आपको कहा कि बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी में नेम ऑफ ऑथर्स होने चाहिए, उसका जर्नल का नाम, टाइटल का नाम, पेपर के टाइटल का नाम, कौन से साल में पब्लिश हुआ है, उसका ईयर कौन सा है, उसका पेज नंबर कौन सा है, वॉल्यूम कौन सा है, सब चीजों की बात करें तो डेट इज कॉल्ड मैनुअल मतलब सब कुछ चीजें एक साथ लिख रहे हैं। ये आपके पास एक एग्जाम्पल शो होगी होगी आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा रेफरेंस में कि जो है ना दिस इज द ऑथर का नाम। इस तरह से रेफरेंस लिखा गया होता है बेसिकली। जो हम लास्ट में बिब्लियोग्राफी होती है ना रेफरेंस में, ये सब चीजें आपको मिलती हैं कॉमनली, मोस्ट कॉमनली, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो प्राइमरी चीजें जो होनी चाहिए, सबसे पहले ऑथर का नाम आता है, जितने भी ऑथर हैं एट ऑल करके, ईयर आती है, कौन से साल का पेपर है, टाइटल है, ठीक है, टाइटल से आता है एक पेपर का टाइटल, जनरल का टाइटल, ये सब चीजें एक रेफरेंस है। अब रेफरेंस को खुद से क्रिएट करते हो, साइटेशन को खुद से लिखते हो, साइटेशन मैनुअल रेफरेंसिंग। आपने क्या किया, एक नाम नंबर वन पे आपने उसको लिखा है और लास्ट में आपने उसकी बिब्लियोग्राफी भी दे दी है, तो दिस इज कॉल्ड मैनुअल रेफरेंसिंग, ठीक है। खुद से आपने टाइप किया है, खुद से उसकी गाइडलाइंस सेट की हैं, खुद से उसकी ऑर्डर, उसकी स्पेसिंग, सब कुछ आपने खुद से मैनुअली टाइपिंग करके किया है, दिस इज कॉल्ड मैनुअल रेफरेंसिंग, ठीक है। अब मैनुअल रेफरेंसिंग को हम चैलेंजेस क्या होते हैं ड्यूरिंग मैनुअल रेफरेंसिंग? टाइम कंज्यूमिंग होता है, ऑब्वियसली यू आर साइटिंग पूरा एक रेफरेंस आप खुद से लिख रहे हो, खुद से टाइप कर रहे हो, तो डेट इज कॉल्ड टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग होता है वो एरर्स ड्यूरिंग जर्नल सबमिशन, जब आप उसको सबमिट करा रहे हो तो एरर आ रहा होता है, ठीक है। मिसिंग साइटेशन, कुछ साइटेशन मिस हो जाती हैं, फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं हो रही, इनकंसिस्टेंट है, डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम है। अच्छा, आप सोच रहे होगे मिस ये बता रही हैं कि जो है ना मैनुअल रेफरेंसिंग क्या होती है, लेकिन मैं उससे पहले मिस कर दी मैंने, मुझे वो बतानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंसिंग होते रेफरेंसिंग एक्चुअली में दिखते कैसे हैं। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है पूरी कंप्लीट। देखिए रेफरेंसिंग, अगर हम एक आर्टिकल को रीड करते हैं ना, तो रेफरेंसिंग मोस्टली इस तरह से होता है कि लिखा दिया हुआ ही उसका पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो ये तो उसका इनकम्प्लीट पेपर है। अच्छा, डेटा बेसिस, एक मिनट, ये गूगल स्कॉलर मैं प्रेफर करती हूँ, गूगल स्कॉलर को। गूगल स्कॉलर पे जाके एक पेपर का नाम लिखा है मैंने, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, दिस इज अ पेपर। ये एक मेरे पास एक पेपर गूगल स्कॉलर पे एक पेपर आ रहा है, एक मिनट, ये
इंफ्लेमेशन, एनालिसिस ऑफ इंफ्लेमेशन। अगर ये इस तरह से विंडो शो हो रही है जिसमें आपको साइटेड बाय 425, इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर पेपर जो है 425 लोगों ने अपने पेपर्स में इसकी रेफरेंसिंग दी हुई है, ठीक है? ये इसका दिया गया है। साइट है, साइट का मतलब है इस साइट पे जो क्लिक करते हैं ना, इस तरह से इसके डिफरेंट स्टाइल्स में वैंकूवर, हार्वर्ड, शिकागो, एपीए, एमएल, दीज आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स में इसकी रेफरेंसिंग दी गई है, और यहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो कि रेफरेंसिंग आप इससे कर सकते हो, जिसमें एंड नोट भी है। तो इस तरह से रेफरेंस होती है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पहले ऑथर्स का नाम है, ये इंफॉर्मेशन जो कि पेपर पर साइट, ये जर्नल का नाम है, ये उसका वॉल्यूम वॉल्यूम है, इशू है, एंड दिस इज नंबर ऑफ पेज जिस पे ये पेपर मिलेगा आपको। साइटेशन की आपको मेरी ये लाइन का इसकी रेफरेंसिंग देखी, खोलेंगे आप इस पेज को खोलेंगे, नंबर पे इस जगह पे ये पेपर लिखा हुआ है, तो आप जाके इसको रीड करें और इसके फाइनल की मैंने ये बात यहाँ से ली है। तो साइटेशन अभी खोलती हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, नजर आ रही है मेरे? ओके, दिस इज द पेपर। ये पूरा नहीं खुल रहा है इस तरह से, ये एक पेपर है, ठीक है, ये इसका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट है। दूसरा पेपर खोल लेती हूँ जिसमें मुझे, मैं पूरा पेपर रीड करना चाह रही हूँ। ओके, ये जस्ट चेक दिस, दिस इज अ मेन पेपर, ये एक पूरा पेपर है, ठीक है। उस पेपर में मेन टेक्स्ट में यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में कोई रेफरेंस नहीं होता, नो दैट एब्स्ट्रैक्ट में आप कोई रेफरेंस की देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि पूरे पेपर को समराइज किया किया है, ठीक है। आपने एक पर्टिकुलर लाइन का एक रेफरेंस दिया है, ये रेफरेंस है, ठीक है जी। मैं इसको क्लिक करूंगी तो रेफरेंस मुझे पूरा वहाँ पे मिलेगा लास्ट में बिब्लियोग्राफी पे, जिस नंबर पे मैंने रेफरेंस दिया है मुझे वो नंबर, उसी नंबर पे वो रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तरीका होता है रेफरेंसिंग करने का, साइट करने का, कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना रेफरेंस कहाँ पे किया है और किस तरह से आप उसको देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना, अ, ये बात एक ये वाला रेफरेंस वन पे और आपने इसको नंबर 5 पे किया हो, तो ये होती है इनएक्यूरेट साइटेशन। साइटेशन और बिब्लियोग्राफी दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन होनी चाहिए। अगर साइटेशन नंबर 1 पे है, आपने एक पर्टिकुलर पेपर पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 क्लिक करोगे तो 1 पे ही होना चाहिए लास्ट में भी वो, ठीक है। ये उसको अलाइन करना है आपने, तो ये अलाइन आप क्या मैनुअली कर सकते हो? मैनुअली करने में आपका कितना टाइम जाएगा? आपको कितना जाएगा कि आपने जो है ना उसको, आप पहले नंबर 1 पे वहां पे नंबर 1 लिखा, मैनुअली का मतलब होता है इस तरह से, आपने एक डॉक्यूमेंट खोला है ना इस तरह से, आपने यहाँ पे कुछ लिखा है नंबर 1, ये आपने 1 यहाँ लिखा है, और लास्ट में इसका जो 1 का रेफरेंस है वहां से यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ये यहाँ से कॉपी किया है, ठीक है, और इसको लास्ट में आपने लिस्ट में डाल दिया है। तो दिस इज कॉल्ड, ये 1 है ना, लास्ट में आपने नंबर 1 पे ही रेफरेंस लिस्ट पे 1 पे आपने ये रेफरेंस देना है, ठीक है। तो ये आपका 1 रेफरेंस आ गया और ये 1 पे है, तो जिससे इस तरह से मैंने सजेशन रहती है, लेकिन मुझे तो बहुत मतलब सर्च करना था। आपने पहले खुद से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आप खुद से जो है ना उसको अलाइन कर रहे हो कि पहले नंबर पे है, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, और जब आप इसको सबमिट करा रहे हो जनरल है तो वो आगे भी हो जाते हैं। अब वर्ड डॉक्यूमेंट, अगर मेरा सिस्टम कोई और है, आपका कोई और है, वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो चेंजिंग, आपके पास जाके वो शफल हो जाएंगे या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैनुअल साइटेशन में देर कुछ प्रॉब्लम्स फेस होती हैं हमें, जो कि हमें अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स। रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स को जब आप यूज करोगे, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। तो कॉमन मैनेजमेंट टूल्स कौन से हैं हमारे पास? एक तो एंड नोट, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जब से के एंड नोट करेंगे, एंड नोट करेंगे। एंड नोट में दूसरा जबरेफ है, मेंडले है, जोटेरो है, मोस्टली एंड नोट यूज होता है। मैं एंड नोट यूज करती हूँ, आई प्रेफर एंड नोट। इसके अलावा मेंडले है, जोटेरो है, बहुत सारे और सॉफ्टवेयर हैं जो कि क्या करते हैं, सिंपली आपके रेफरेंसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, टाइम सेव करते हैं, आपके फॉर्मेटिंग एरर को अवॉइड करते हैं, कि आपने जो, मैंने आपको जो विंडो का इशू बताया या आपको मैनुअली एक एक चीज टाइप करने का बोला है, आप उसको जो है ना अवॉइड करते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑटोमेटिकली जनरेट्स बिब्लियोग्राफी। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है डेट इज दिस, बिब्लियोग्राफी आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद से जनरेट होती है, यानी ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। सो अब नाउ कम्स फॉर द एंड नोट, हैंड्स ऑन। अच्छा, आप लोगों के पास एंड नोट है? किसी के पास? आप मुझे चैट पे बताएं कि एंड नोट किस किस के पास है।
अब हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, अब हम सीधा एंड नोट पे हैंड्स ऑन करेंगे, एंड नोट करके देखेंगे। आप लोग एंड नोट आपके पास अगर एंड नोट नहीं है तो आपको एंड नोट प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग सिंपली क्या करोगे, एंड नोट को डाउनलोड करोगे, जिस तरह से मैंने बताया। एंड नोट को डाउनलोड करने के बाद आपसे की मांगी जाती है, जिसकी वजह से मोस्टली एंड नोट लोगों के पास नहीं आता। की आपको मैंने आपके साथ एक रीड डॉक्यूमेंट है उसमें दिए, आपने की को कॉपी करना है, पेस्ट करके आपने सिंपली एंड नोट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड होगा तो आपके पास एंड नोट इस तरह से नीचे टेक्स्ट बार में मेरे पास एंड नोट शो हो रहा है EN के नाम से। एंड नोट ये इस तरह से एंड नोट खुल रहा है, मैंने वो की यूज करके एंड नोट को जो है ना अपने पास डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, जब आपके पास एंड नोट, इफ यू आर न्यू टू एंड नोट, जब आपके पास एंड नोट खुलता है तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन होती है, इस तरह का एक इंटरफेस आता है, जिसको आप एंड नोट इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, ये उसका इसका टूल बार है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले एंड नोट पे आने के बाद एंड नोट का इस तरह से आपके पास एक ब्लैंक विंडो शो होती है, जिसमें आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो आपको लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं क्या करूंगा। अब आप सबसे पहले बनाएंगे लाइब्रेरी। एंड आने के बाद जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है टू प्रिपेयर टू मेक आर लाइब्रेरी। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आपके पास देर आर मल्टीपल ऑप्शन। सबसे पहले न्यू, ओपन लाइब्रेरी, ओपन शेयर लाइब्रेरी, रिसेंट। क्या आपने अभी जो रिसेंट फाइल खोली है आप उसको खोल सकते हो। अब अच्छी बात यह है कि आप लोग न्यू यूजर हो, आपके पास कोई भी लाइब्रेरी बनी हुई नहीं है। अगर लाइब्रेरी बनी हुई है और आप उसी को खोलना चाह रहे हो तो आप उस ओपन लाइब्रेरी में जाएंगे। बट आपके पास कोई भी लाइब्रेरी नहीं है, यू आर न्यू टू एंड नोट, आप क्या करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे, ताकि आपने नई लाइब्रेरी बनानी है। न्यू लाइब्रेरी लिखा हुआ आ रहा है आप, ठीक है। न्यू रेफरेंस लाइब्रेरी का मतलब है कि आप एक नई लाइब्रेरी बना रहे हो। अब फॉर एग्जांपल मेड स्पार्कस के लिए मैं एक बना रही हूँ, मैंने इसका टाइटल दिया है मेड स्पार्कस का, एंड आई हैव मेड सेव किया। तो ये एक मेरी नई लाइब्रेरी बन जाएगी, जो इस तरह से मेरे पास एक विंडो खुलेगी। दिस इज कॉल्ड एंड नोट इंटरफेस। इसके तीन सेक्शन है। मुझे एक बार बस बता दें कि एम आई ऑडिबल, मैं अब सबको सुनाई दे रहा है बिकॉज देर आर मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। क्या मैं, अच्छा, की आप लोगों को बेटा मिल जाएगी। मारूफ नूरुल हुदा आप लोगों को एंड शायद अब तक आप लोगों को भेजा नहीं गया, क्योंकि मैंने लेट ही भेजा था, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी आप सिंपली इसको सुन लें, आपको आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत मजे का है, आप लोग इंटरेस्टली इसको सुने। ये वॉइस इज क्लियर, थैंक यू। प्लीज रिमाइंड अ बिट फ्रॉम की पॉइंट। ओके, ओके, ओके। सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपके पास अभी सबसे पहले आपको एंड नोट का हैंड्स ऑन दे रही हूँ, जिसके लिए हम सब यहाँ पे थे। मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट स्टेप्स बता दिए कि एंड नोट जो है कि हम क्यों एंड नोट की तरफ आ रहे हैं। दो तरह के रेफरेंसिंग मेथड्स होते हैं, एक मैनुअल मेथड होता है और एक होता है सॉफ्टवेयर से हम रेफरेंसिंग कर रहे हैं। रेफरेंसिंग में करके कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि मैनुअल इज टू टाइम कंज्यूमिंग। तो बहुत जो है ना, आपको कॉपी पेस्ट करके आपको प्रॉपर रेफरेंसिंग करनी होती है, एक नंबर एक साथ एक से कॉपी भी खुद देनी है, साइटेशन भी खुद करनी है, सब कुछ आपने खुद ही करना है। आप करोगे, आपने क्या करना है, आपने सॉफ्टवेयर यूज करना है, एंड यूज करोगे। मैंने भी है, सोटेरो भी है, जो है मल्टी रेफरेंसिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर से आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। तो आपको फ्री में मिल रहा है पेन नोट, जो कि मैंने आपके मेडिस स्पार्कल टीम को प्रोवाइड कर दिया है। आपको वो शेयर कर दिया जाएगा अलॉन्ग विथ इट्स की। आपको आपने की डालनी है और आपके पास वो जो है ना एंड नोट डाउनलोड हो जाएगा, और फिर आपके पास एंड नोट जो है आपके पास खुलेगा। एंड नोट आप जब खोलोगे तो सबसे पहले आपके पास इस तरह की विंडो शो होगी, ब्लैंक विंडो, दिस इज अ ब्लैंक। ये इसको काट दीजिएगा जो भी आ रहा है हेयर एंड देयर वट एवर। आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस तरह की आपके पास एक विंडो आएगी, यू विल मेक अ न्यू लाइब्रेरी। काम आप करोगे लाइब्रेरी बनाने का, जैसे आप कोई भी फोल्डर चीजें अलाइन करने के लिए आप क्या करोगे, लाइब्रेरी बनाओगे। लाइब्रेरी बनाने के लिए यू यू विल गो टू फाइल, आप न्यू लाइब्रेरी बनाओगे, या आप जो आपने पहले बनाई थी आप उसको ओपन करोगे। अभी हमने तो इधर पहले न्यू क्लिक करोगे, जो भी आपको नाम देना है दे दो। न्यू लाइब्रेरी पे आप आ रहे हो, आपने जो है ना इस पे न्यू लाइब्रेरी बना लोगे। मैं नहीं बना रही हूँ, मैंने अभी अभी मेडिस पार्कस में बनाई। खोलोगे ओपन लाइब्रेरी पे क्लिक करके, यहाँ पे मेडिस पार्कस ढूंढो, ढूंढ रही हूँ मैं। ये रहा, ये मेडिस पार्कस मैंने बनाई है लाइब्रेरी, ज्यादा मल्टीपल लाइब्रेरीज जो मैंने बनाई हुई है, क्योंकि मैं बहुत काम करती हूँ रिसर्च पे। तो मेडिस पार्कस पे मैं अभी लाइब्रेरी बनाई है मैंने।
लाइब्रेरी बनाने का मेन पर्पज ये होता है कि आपने जो डिफरेंट पेपर्स के जो काम है अलग अलग फोल्डर से अलाइन करे हो। मैंने मेरे साथ इस तरह को काम करने में तो करने तो वो सारा उस फोल्डर में उसके रेफरेंसेस आएंगे। अब किसी मैंने किसी और पेपर को उसमें डाल दिया तो मिक्सअप हो जाएंगे, मुझे खुद ही याद नहीं रहेगा कि मेरी लाइब्रेरी में कौन से रेफरेंस कहाँ पे है, ठीक है ना। आपको लाइब्रेरी बनानी चाहिए और बनानी पड़ेगी आपको, और बनानी है आपने कि आपने मैंने ये आप बना लो, आप नई लाइब्रेरी बना लो, काम कर रहे हो। अगर आप ट्यूशन पे काम कर रहे हो, आपने अलग लाइब्रेरी बना ली, इससे आपका रेफरेंस और आपके रेफरेंसेस अलाइन होंगे एज पर योर पेपर, ठीक। अब हम बात कर रहे थे थ्री डिफरेंट सेक्शंस के। अगर इस पूरी विंडो को आप देखो तो ये इसको हम कहते हैं एंड इंटरफेस सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है और ये तीसरा सेक्शन है। जो मेन दिस इज द मेन जो ये बीच वाला सेक्शन है विंडो है, इसके अंदर अपने आप रेफरेंसेस शो हो रहे होते हैं, ये प्रीव्यू, और यहाँ पे आपके सारे रेफरेंसेस जितने रहते हैं जीरो है। अभी लाइब्रेरी में कोई भी रेफरेंस नहीं है, ठीक। अच्छा, बात पॉइंट आपको कहीं ध्यान लो, कहीं पे लिख लो। आपको अपने रेफरेंस जब आप रेफरेंसेस आप पेपर पे काम कर रहे हो ना, आपने रेफरेंसेस डालने हैं, आपको पता है कि मुझे साथ साथ रेफरेंसिंग करनी है। आपने इस विंडो को खुला रखना है। आपका एंड नोट जब तक खुला नहीं होगा तो ये आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ लिंक नहीं करेगा। आप लिखते राइटअप काम करते हो वर्ड डॉक्यूमेंट पे, यू आर राइटिंग योर पेपर, आपने एक लाइन लिखी है, किस पे लिखी है, वर्ड डॉक्यूमेंट पे आपने वो लाइन लिखी है। अब आप वर्ड डॉक्यूमेंट को एंड नोट के साथ अलाइन करने के लिए ये विंडो खुली हुई होनी चाहिए। खुली, मैंने मेरे साथ से बनाया, मैंने ये विंडो खोल दी है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाऊंगी और कुछ लिखना शुरू करूंगी। मैंने अभी बात की, ये वर्ड डॉक्यूमेंट आ गया। अब आप वर्ड डॉक्यूमेंट की इंटरेस्टिंग बात देखो कि वर्ड डॉक्यूमेंट में इंटरेस्टिंग तो नहीं है, सॉरी, कि आपका वर्ड डॉक्यूमेंट जब आपके पास आपकी सिस्टम पे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे जब एंड नोट डाउनलोड होता है ना, तो वर्ड डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे एंड नोट शो हो रहा होता है, ये देखो लिंक्ड हो गया। इसका मतलब मैंने एंड नोट को वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर दिया है, दिस इज लिंक। एंड नोट पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास पूरी एंड नोट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो कि मैं अभी यूज नहीं कर रही हूँ, ठीक है? बस आपने ये आपकी विंडो सब आपके पास एंड नोट डाउनलोड हो जाएगा तो आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट में वो नजर आना चाहिए, नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। अब मैंने लिख दिया नोजिया एंड वॉमिटिंग वाली बात जो मैं आपको करी थी ना, मैं उसी को लिखना चाह रही हूँ। नोजिया एंड वॉमिटिंग आर कॉज्ड आर साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है। अब मुझे इसका रेफरेंस देना है, इस लाइन का रेफरेंस देने के लिए अब मैं जाऊंगी गूगल पे। मैंने ये बात कहाँ से ली थी, कीमोथेरेपी, फॉर एग्जाम्पल ये कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट है, ठीक है। रेफरेंस की बात ली थी, ये पेपर है, मैंने इस पेपर को खोला तो नहीं, खोलने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे साइट का ऑप्शन नजर आ रहा है, साइट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास है कि साइटेशन की विंडो खुल जाएगी और यहाँ एंड नोट लिखा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं मंडेलो यूज कर रही हूँ या कोई और सॉफ्टवेयर यूज करी तो मैं ऑब्वियसली उस पर क्लिक करूंगी, करी तो मैं एंड नोट क्लिक करूंगी। और देखा होगा तो ये रेफरेंस सीधा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड बार में ये चला गया है रेफरेंस। रेफरेंस को क्लिक किया, ये रेफरेंस मेरा खुल जाएगा मेरी फाइल डाउनलोड फाइल में, जहाँ पे उसमें नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करो तो ये मेरा ऑटोमेटिकली रेफरेंस की विंडो में आ गया है, एंड नोट की विंडो में आ गया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि व्हाइल डूइंग यूर वर्क, जब आप राइट कर रहे हो तो आपको एंड नोट वाली विंडो खोल के रखनी है, और एंड नोट डायरेक्टली ये एंड नोट पे आ गया। ये रेफरेंस था कीमोथेरेपी या डबल एज सॉर्ड। तो दिस इज द रेफरेंस, आप अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये रेफरेंस था डबल एज सॉर्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। ये रेफरेंस था 2022 का रेफरेंस था, इसी रेफरेंस को मैंने लिया है, इसी रेफरेंस को मैंने साइट किया है, और मेरी एंड नोट की विंडो पे यही रेफरेंस खुल रहा है, ठीक। अब आप इस रेफरेंस को देख सकते हो कि ये अब आपके पास एक रेफरेंस आ गया है, नंबर वन, यहाँ पे वन शो हो रहा है। ये आपके पास प्रीव्यू फाइल है जिसमें ये प्रीव्यू का एक रेफरेंस, पूरा रेफरेंस अलग अलग करके इसको लिखा गया है कि इसका इशू क्या है, इसका पेज नंबर क्या है, पूरा रेफरेंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली चला गया है। ये प्रीव्यू का ऑप्शन है कि आपके पास इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। ये अटैच डॉक्यूमेंट है, अगर मैं पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करूँ तो वो अलग बात है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तो ये मैं समझना चाह रही हूँ, आप इसको सिंपली आप जो आपके लिए एक्सेसिबल है, आपने सिंपली एंड नोट को डाउनलोड किया, लाइब्रेरी बनाई, लाइब्रेरी बनाने के बाद उसको लाइब्रेरी को खुला छोड़ दिया, और आपने अब रेफरेंस को साइट करना है। रेफरेंस को साइट किया, रेफरेंस आपके पास सिंपली यहाँ पे आ गया है। अभी बारी आती है साइटेशन की। इस रेफरेंस पे अगर आप देखो दो बातें हैं। अब रेफरेंस का ब्लूटूथ नहीं है, ब्लू नहीं है, रेफरेंस शुड बी इन ब्लू। आप इस रेफरेंस पे जब क्लिक करोगे तो ये ब्लू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक से ज्यादा रेफरेंस होंगे, तो जो रेफरेंस आपने अपने साइट में उस पर भी क्लिक करना तो ब्लू हो जाएगा। अभी ब्लू, अभी
डॉक्यूमेंट में जहाँ पे आपने साइट करना था। ये मैंने साइट करना है यहाँ पे। एंड नोट पे क्लिक किया। नॉर्मली ये विंडो होती है हमारे पास खुली हुई होती है, होम की विंडो। हमने होम विंडो से जाना है एंड नोट आएंगे तो हमारे पास दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस। ऑप्शंस आ रहे हैं। ये स्टाइल्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स होती है कि आपको कौन से स्टाइल में अपना रेफरेंस देना है। ठीक है, अभी कवर स्टाइल की बात कर रहे हैं। मैं कवर स्टाइल पर मैंने क्लिक किया है, ऑटोमेटिकली क्लिक होता है, तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, ये मेरे कवर ही होता है। आप इंसर्ट साइटेशन पे जाएंगे लास्ट में, और इन किसी के में इंसर्ट साइटेशन यहाँ शो हो रहा था, किसी के यहाँ शो हो रहा था, किसी के यहाँ शो हो रहा था। आपने पढ़ना है, आपने वो ब्लाइंडली उसको नहीं करना, कभी कॉर्नर पे होगा। साइटेशन में जाके सेकंड और थर्ड ऑप्शन होता है। सेकंड यहाँ पे किसी के पास थर्ड भी होता है। सिलेक्टेड साइटेशन बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड दैट साइटेशन। यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, इंसर्ट साइटेशन पे जाना है। इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन पे जाएंगे और आप इसको करोगे, ये देखो नंबर वन, बिब्लियोग्राफी भी खुद ही आ गई, साइटेशन भी खुद ही आ गया। सही। अभी एक रेफरेंस आ गया। अब मैं ये करती हूँ कि मैं इस पेज को ब्रेक कर देती हूँ। ये रेफरेंसेस की मैं यहाँ पे हेडिंग दे रही हूँ। अब मेरी रेफरेंसिंग सारी बिब्लियोग्राफी मेरी यहाँ पे सेव होती जाएगी। रेफरेंसिंग, रेफरेंसेस ये लिखना ये लिख लिया। अब आपके सारे रेफरेंसेस यहाँ पे आते आते जाएंगे। ये एक रेफरेंस की बात होगी। अभी मारूफ ने मुझसे क्वेश्चन, मानूर ने या मारूफ ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मीन्स एक के साथ दो रेफरेंसेस आ सकते हैं। यहाँ पे कोई और बात लिख देते हैं, मेड स्पार्कल्स और वॉट एवर, ये मैंने जो भी मुझे लिखना था ना, मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक। अब ये एक रेफरेंस मैंने दे दिया है और मैंने फुल स्टॉप लगा के सेकंड लाइन पे आ गई हूँ। अब मुझे यहाँ पे इसी रेफरेंस के साथ एक और रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे मैं ये रेफरेंस देना चाह रही हूँ। मैंने इसको साइड किया जैसे पहले किया था, दोबारा देखने कैसे साइड किया था, एंड क्लिक किया। ऑटोमेटिकली रेफरेंस यहाँ पे सेव हो गया। इस पे डबल क्लिक किया, ये विंडो भी खुल गया। उसी पे डबल क्लिक किया तो ये रेफरेंस मेरा यहाँ पे खुल गया। ये देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी सेम रेफरेंस आया है। अब आपके पास टोटल कितने रेफरेंस हो गए, दो रेफरेंसेस। एक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी अभी अभी लिया है, और एक ये। आपने अभी मैंने कौन सा रेफरेंस डालना है, ये वाला, तो मैंने इस क्लिक करना है। ये वो आपके पास आता नहीं है, आप इसको सिलेक्ट करो और दोबारा वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाओगे जो आप लिख रहे थे, दोबारा से करना है आपने इसको यहाँ पे करके एंड नोट पे गए, इंसर्ट साइटेशन, इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन। देखो वो आ गया। ब्रैकेट भी खुद ही लग गई, दो मिनट में ड्राइंग भी करेंगे तो भी आ गया इसमें। यहाँ पे ये रेफरेंस डाल रही हूँ। दोबारा से रेफरेंस में यू यूज मोर देन वन प्लेस। आप एक ही बात, आप एक ही रेफरेंस को तीन से चार जगह पे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने तीन से चार बातें यहाँ से उठाई हैं। मैंने से उठाई है, मैं इसको भी बात करूंगी तो देखो ये दो, ये देखो। मैं आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होता है जब आप वेबिनार में होते हो। आप डायरेक्टली, मैं आपका फेसेस नहीं देख पा रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि जब आप एक से ज्यादा रेफरेंस यूज करते हो ना, आप एक जगह पे यूज करें तो नंबर हो जाएगा। अब दो पोजीशन पे ये रेफरेंस है, अभी जहां जहां यूज करूंगी ये नंबर टू ही शो होगा वहां पे। अगर मैं इसको थर्ड लाइन पे, ये मैंने एक और रेफरेंस डाल दिया, यहाँ पे मैं एक और रेफरेंस डालूंगी। रेफरेंस के साथ खेलना आना चाहिए, बहुत मजे की चीज है ये। मैं ये वाला रेफरेंस डाल रही हूँ। एंड नोट पे क्लिक किया, ये वापस यहाँ खुला। इस पे क्लिक किया, सॉरी, ये रेफरेंस पे क्लिक किया, ये यहाँ पे आया और ये मेरी विंडो पे आ गया। अब मेरे पास टोटल तीन रेफरेंसेस हैं। अब मैं इस रेफरेंस की बात कर रही हूँ, ये वाले रेफरेंस की जो मैंने अभी अभी लिया है। अब इस रेफरेंस को मैंने क्लिक किया, मैंने अब ये रेफरेंस यहाँ पे डाल दिया। अब मेरे पास ये रेफरेंस थी। देखो ऑटोमेटिक साइटेशन हो रही है, ऑटोमेटिकली बिब्लियोग्राफी पूरी पूरी लिखी हुई आ रही है। ऑथर का नाम आ रहा है, टाइटल आ रहा है, जर्नल का नाम आ रहा है, ईयर आ रहा है, वॉल्यूम, पेज नंबर, सब कुछ खुद ही आ रहा है। ऑटोमेटिक बिब्लियोग्राफी है। ठीक है, देखो मैम, कंप्लीट आ रहा सॉरी टू है। इंटरप्ट। जी बोले। आपकी वॉइस बार बार डिस्टॉर्ट हो रही है। आई डोंट नो जुनैरा क्यों हो रही है। मेरे पास इंटरनेट तो सही चल रहा है और मैं लाउड भी हूँ। डिस्टॉर्ट हो जाती है बीच में। पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी ये मैसेजेस आ रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है। अरीबा, आपने मुझे कहा कि कैन यू रिपीट द स्टेप प्लीज, यू कौन सा स्टेप जो है रिपीट करना है, मैं दोबारा से मैसेज कर दूँ। कौन सा step मैं बता देती हूँ। ठीक है बेटा, सॉरी, रियली सॉरी, आई डोंट नो व्हाई कि मेरी वॉइस अनक्लियर है। मैं अपने को कुछ सिखाना चाह रही हूँ और सारे समझ में आ जाए। और जो है ना,
मैं बार बार रिपीट करने के लिए रेडी हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई माय वॉइस इज डिस्टॉर्टिंग। ऐसा पहले हुआ नहीं है, बिकॉज मैं मल्टीपल वेबिनार्स लेती रहती हूँ और मेरी वॉइस का कभी इशू आया नहीं है। फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इस तरह से वॉइस इशू आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। अरीबा प्लीज रिपीट, टेल मी कि आपको कौन सा स्टेप रिपीट करना है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टेप्स पे आगे आ चुकी हूँ। साइटेशन मैं एक और करके बता देती हूँ। ठीक है, देखो। अच्छा, एंड नोट कहाँ से डाउनलोड होगा? एंड नोट आपको आपके प्रोवाइड कर देंगे, मेडिस स्पार्कल्स की टीम आपको आई डोंट नो ईमेल करेगी या कैसे भी आपको प्रोवाइड करेगी। आप उसको डाउनलोड करेंगे और आप उसको जो है ना फिर आप यूज करना शुरू करेंगे। यूज करना, सबसे पहले आपने लाइब्रेरी बनानी है। लाइब्रेरी बनाने के बाद आपने उसके रेफरेंसेस को वन बाय वन आपने रेफरेंसेस को साथ के साथ। अब अच्छी बात, जो नोट ये है कि जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो आप साइंटिफिक राइटिंग कर रहे होते हो, साथ साथ ही रेफरेंस डालते रहो। तो जब आप सॉफ्टवेयर से डालते हो ना, तो बीच में कोई वो एरर्स नहीं आ रहे होते। आप साथ साथ बात कर रहे हो, साथ साथ रेफरेंस डालते रहो, ताकि आप कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि जब हम मैनुअल रेफरेंसिंग की तरफ जाते हैं, तो हम सारे रेफरेंसेस बात के लिए छोड़ देते हैं कि इसको मैं बाद में डालूंगी। नो, आपने एक लाइन लिखी है, उसी वक्त उस लाइन का रेफरेंस डाल दें। दूसरी लाइन लिखी है, उस लाइन का रेफरेंस डाल दें, तो आपकी बिब्लियोग्राफी नीचे खुद ही मेंटेन होती रहेगी। दोबारा से साइटेशन करते हैं। साइटेशन हमने तीन रेफरेंसेस की साइटेशन कर ली है, तीन रेफरेंसेस हमने किए हैं। अच्छा, मैं एक और काम करना चाह रही हूँ। मैं थर्ड वाला जो रेफरेंस है ना, ये जो मैंने मैंने यहाँ से भी लिया, इससे भी करना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, दोबारा से साइटेशन को सिलेक्ट किया। अब देखो ये रेफरेंसेस यहाँ पे भी आ गया। मैं एक से ज्यादा जगह पे दिया है, मैं यहाँ पे भी थ्री आ गई, यहाँ पे भी थ्री आ गई। आप रेफरेंसेस के साथ खेलते हो, आपको सिंपल स्टेप आ गए स्टेप में डालने का। आप सिंपली आपने लाइब्रेरी बना ली, आपने रेफरेंस को इंस्टॉल किया, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपने साइट क्लिक किया, डाउनलोड किया, खुली हुई थी, रेफरेंस विंडो में चला गया। अब आपने डॉक्यूमेंट में साथ के साथ रेफरेंस डालते रहना, खुद भी अरेंज हो रहे हैं खुद ही बिब्लियोग्राफी भी आ रही है। आपको मैनुअली क्लिक करोगे, अगर मैनुअली डिलीट करोगे, आपका रेफरेंस देखो मैंने किया, रेफरेंस डिलीट हो जाएगा। तो मैं आदमी कुछ नहीं करना है इस पे, बस होते हैं कि आपका रेफरेंस जिस जगह पे उस जगह के उतना ही नंबर आएगा। अगर ये रेफरेंस दो पोजीशन पे है, तो वो लिखा हुआ आएगा। अगर रेफरेंस तीन तीन भी लिखा हुआ आएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा। और आप चाहो करना तो ये दो होगा ही नहीं। अगर इसको दो कर दो, तो ये रेफरेंस दो नहीं होगा। देखो दो हुआ। अब फिर से करके देखते हैं, ये देखो, करके देख लो। होगा ही नहीं, क्योंकि रेफरेंस तीन पे है तो दो पे आ ही नहीं सकते। दो पे एक बार एक करके एक रेफरेंस रहेगा ना, वो ये है। तो ये क्यों होगा? अगर आपको इसको दो पे आएगा तो आपको दूसरा वाला रेफरेंस डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके ये टू पे आएगा। ठीक, तो वन टू थ्री सीक्वेंस वाइज। दोबारा से एक स्टूडेंट ने कहा है कि रेफरेंसिंग करके दिखा दो। ये है हमारे पास, बेटा, एक बार दोबारा से देख लें, जो भी पेपर है आपका जिसको आपको साइट करना है, आपने साइट के ऑप्शन पे जाना है, इसको क्लिक करना है। रेफरेंस ऑटोमेटिकली आपका रेफरेंस आपका जो है ना यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। क्लिक करोगे, डाउनलोड जहाँ पे भी आपका जगह जाता है वहां पे खुल जाएगा। डबल क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये रेफरेंस यहाँ पे खुल गया आपका। तो अब आपके पास टोटल चार रेफरेंसेस हो गए। अब आपको नजर आ रहा होगा एक पूरी लाइब्रेरी मेंटेन होती हुई, कि मैं सिर्फ से रिलेटेड मैंने चार पेपर डाउनलोड किए थे, चारों पेपर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं मेरे पास। जिस पेपर की रिव्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक, ये पूरा जिसमें आप सारे रेफरेंसेस आ रहे हैं। अब मैंने क्या किया, 86 वाला अभी भी मैंने रेफरेंस किया था ना, उसको मैंने यहाँ पे डालना है। अ, यहाँ पे डाल रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगी इंसर्ट साइटेशन पे, ये एन इंसर्ट साइटेशन, इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन पे क्लिक करूंगी, तो ये रेफरेंस मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, देखो अब ये चार है, ये तीन है। ये तीन क्यों है? क्योंकि ये वाली बात मैंने तीन पे की थी और तीन पे ही रही है। तो ये ऑटोमेटिक होता है, नंबरिंग ऑटोमेटिकली अलाइन होती है। तो दिस कॉल्ड बिब्लियोग्राफी, दिस इज कॉल्ड विद साइटेशन। ये साइटेशन कंप्लीट हो गई यहाँ पे। बेटा टेक्स्ट मी, अगर कोई इशू आ रहा है तो मुझे दोबारा से टेक्स्ट करो, मैं देखो। होल पेपर को क्यों साइड करेंगे? बेटा होल साइड करना है, आपने पूरी पेपर साइड करना है। अगर आपने सिर्फ एक लाइन ली है, आप वो पूरी पेपर साइड करोगे। आपने ये लाइन इस पर्टिकुलर पेपर से ली है, अब चलिए ऐसा नहीं होता कि जो लाइन आपने जहाँ से उठाई है आप सिर्फ उस लाइन को साइड करो। हमारे पेपर में हम उस लाइन को जहाँ से लिया है ना, हम उसकी लोकेशन बताते हैं। हम उसकी लोकेशन बताते हैं कि ये पेपर कहाँ पे है।
यही मैंने बात कहाँ से ली है, तो लोकेशन बताने के लिए यू हैव टू साइट द पेपर। पेपर को इसी तरह से साइट करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया है, कि आप साइटेशन पे क्लिक करोगे, आपका एंड नोट पे वो आ जाएगा आर्टिकल, और आप उस आर्टिकल की रेफरेंसिंग कर देंगे। आपको पूरा रेफरेंस देना पड़ता है उसका, ठीक है, कंप्लीट रेफरेंस। अब आप बात आ जाती है थोड़ी सी आगे चलते हैं इसका। आपने रेफरेंस डाल दिया, रेफरेंस डालने के बाद अब क्या, रेफरेंस हो गया, अब आपने कंप्लीट राइटअप कर लिया है, तो रेफरेंसिंग है ना, दो तीन अगर आप एंड नोट की विंडो खोल के देखो, आपके पास ये चीजें आ रही हैं। स्टाइल, ये दिस इज रिटन एज वैंकोवर, वैंकोवर नजर आ रहा है। वैंकोवर एक क्या है, रेफरेंस स्टाइल है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि कुछ जर्नल्स हैं, जो जर्नल्स जर्नल्स बेसिकली वो एक हब है जहाँ पे आपका पब्लिश होता है, ठीक, जहाँ जहाँ की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। स्टाइल में, वैंकोवर स्टाइल में आप सारे रेफरेंसेस जो आप देंगे ना, वैंकोवर स्टाइल में करके दे, मुझे ये click करोगे तो इसमें सारे स्टाइल खुल जाएंगे। स्टाइल में करके दो, एक है मुझे नोटिस में करके दो, तो इस स्टाइल्स आपने सिंपली क्या करना है, आपने स्टाइल्स को क्लिक कर देना है। ठीक है, आप अभी फिलहाल, और ये वैंकोवर में है। अच्छा, मैं क्या करूंगी, मैंने सारा काम कर लिया है और अब वर्ड डॉक्यूमेंट पे आती हूँ। ये मेरा पेपर कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट राइटअप हो गया। अब मुझे ना सबमिट की रिक्वायरमेंट, आपका इसमें स्टाइल जो है ना, स्टाइल में करके देना है। स्टाइल में आप अभी वर्ड डॉक्यूमेंट पे ही होगा सारा काम। एंड करना है, एंड आगे को खुला छोड़ना है उसको, उसकी लाइब्रेरी को ओपन रखना है, इस तरह से लेते रहोगे। एंड भी वो कुछ नहीं करना, छोड़ दो एंड नोट को, और काम करें। वर्ड डॉक्यूमेंट एंड नोट भी आया है, पूरी रेफरेंसेस की विंडो भी आई हुई है। अब एडिट साइटेशन, ये सब ऑप्शन सारे होते हैं। हाँ, अगर आपने लगता है ना, आप इस पर क्लिक करके तो सारे रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, कि कोई अगर कुछ हो जाए, लेकिन ऑटोमेटिकली होती रहती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, आइए, आपने रेफरेंस कर दिया, अब आ जाते हैं स्टाइल्स पे। मैंने अभी को कहा कि दीज आर द डिफरेंट स्टाइल्स। अब मुझे ना ये पेपर, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल फाइल में चाह दूँ, मुझे जर्नल की फाइल में, आपने जर्नल लिख के देता है, पर जब आप पेपर पब्लिश करवाते, सबमिट करवाते हैं कहीं पे, मैंने आपसे आपको कहते हैं कि मुझे पेपर सबमिट करवा रही हूँ, इस पेपर को एपीएस स्टाइल में भेजना मुझे। एपीएस स्टाइल का मतलब होता है कि इसकी रेफरेंस एपीएस स्टाइल में होनी चाहिए। अब एपीएस स्टाइल क्लिक करी हूँ, अब आप देखो, दिस इज एपीएस स्टाइल, नीचे रेफरेंस खुद ही होगा सारा ये। अब एपीएस स्टाइल का मतलब ये होता है कि एपीएस स्टाइल ऑथर का और ईयर का नाम मांगता है। वो ये नहीं मांगता, 1 2 3 नहीं मांगता। एपीएस स्टाइल का फॉर्मेट ये है कि उसको ऑथर का नाम विथ ईयर चाहिए। ये पहला हो गया, मेरा मेरा अनुवाद एट ऑल टू 2022। ये देखो, ये मेरा, ये रहा रेफरेंस। दूसरा बुज़दार है 2007 का, ये रहा बुज़दार। तीसरा एम से की नाइट है, ये रहा फोर्थ पे। ठीक है, तो दी ये ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, अपने आप को इसने अलाइन कर लिया एपीएस स्टाइल में। अब इससे आई ट्रिपल ई। आई ट्रिपल ई सिंपली कहता है मुझे ना डबल ब्रैकेट चाहिए, यानी स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, वो वाली ब्रैकेट नहीं चाहिए, सिंपल ब्रैकेट। उसको ये वाली ब्रैकेट नहीं चाहिए, ठीक है, उसको ये वाली ब्रैकेट नहीं चाहिए, वो मांग रहा है स्क्वायर ब्रैकेट। स्टाइल सबके अलग अलग होते हैं, आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखिए स्टाइल खुद ही अपडेट हो गया। फायदा ये हुआ कि आपने क्या किया, कि आपको जो रिक्वायरमेंट आप सॉफ्टवेयर यूज करके करते हो ना, आप उसको फौरन से एक क्लिक, आप एक क्लिक, पूरी पूरी मेहनत से, आपके 20 पेजेस के 20 पेजेस का पेपर है आपका, 20 पेजेस, मैंने एक साइटेशन को डबल स्क्वायर करोगे, आपको पहले पता पड़ेगा कि एक को स्क्वायर को चेंज कर रहे हो। मैंने क्या होता है, मैंने भी कोई भी काम आगे सारा मैनुअली करना, बट टाइम भी नहीं होगा, पूरे पूरे दिन लग जाता है आपको साइटेशन को चेंज करने में। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर, आपको एक सेकंड लगता है। कवर में करना है, ये रहा, क्लिक किया, वैंकोवर, ये वैंकोवर में आ गया, ब्रैकेट में आ गया। मुझे इसको जो भी स्टाइल चाहिए, आई ट्रिपल चाहिए, अंडरस्कोर ब्रैकेट, ये अंडरस्कोर में आ गया। स्टाइल्स कभी कभी ऐसा होता है, जब आपने इसको क्लिक किया है इस स्टाइल में एक एक स्टाइल का मतलब छोटा वाला वन थी, ये ऊपर आ रहा है, तो ऊपर ब्रैकेट में आ रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे, अगर कभी ऐसा करता है, आपने क्लिक किया लेकिन आया नहीं, तो आप अपडेट साइटेशन करोगे ना, वो खुद ही अपडेट हो जाता है। अपडेट क्लिक कर दो, तो वो भी अच्छा डेट वाला काम हो, अभी वाला काम हो। So this is all for the end note. I just want to conclude it here. मैं अब आपके क्वेश्चन आंसर लेना चाहूंगी। मुझे आप बताएं कि अब आप ये क्या सीखा, और आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप उसको मुझे बताएं। मैं आपको बेसिक एंड नोट सिखाना चाह रही थी। बेसिक एंड नोट में यही है कि आपने सिंपली एंड नोट का यूज करना है, एंड नोट को रेफरेंस देना है, एंड नोट का सिंपली आपने उसको जो है ना, एंड नोट को यूज करके आप
इन सिंपली मैनुअल राइटर मैनुअल रेफरेंसिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हो। एक सॉफ्टवेयर है, सिंपल, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर, आपको सिर्फ रेफरेंस उसमें इंसर्ट करना चाहिए। उसके बाद उसको आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में साथ के साथ रेफरेंसिंग करेंगे। रेफरेंसिंग इंपॉर्टेंट क्या है वो मैंने आपको बताया। उसमें बेसिकली क्या होना चाहिए, प्लेजरिज्म, डायरेक्ट प्लेजरिज्म, सेल्फ प्लेजरिज्म, साइटेशन पैडिंग, सब कुछ अवॉइड करना है वो मैंने आपको बताया। एंड नोट को डाउनलोड करना है, आपने की यूज करनी है, उसको आप डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद आप सिंपली उसको एक लाइब्रेरी बनाओगे, उसमें रेफरेंसेस डालते जाओगे, जो भी रेफरेंसेस इससे पहले उसको साथ के साथ आप इंसर्ट करते जाओगे। रेफरेंसिंग स्टाइल्स डिस्कस कर लिए, क्योंकि आप डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर जगह का अपना एक स्टाइल होता है। आप उस स्टाइल को खुद से भी जो है ना वो कर सकते हो, खुद से बना भी सकते हो। बना से कैसे सकते हो, एंड नोट पे जाओ। एंड नोट पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अभी फिलहाल आपके लिए मेरे ख्याल में एंड नोट इतना सफिशिएंट है। एंड नोट पे मैं एक बार क्लिक कर रही हूँ, एंड नोट पे आ रही हूँ। एंड आपको ना यहाँ पे ये तो लाइब्रेरीज का है, रेफरेंस में जाके न्यू रेफरेंस खुद से भी रेफरेंस बना सकते हो यहाँ पे। और तो मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, type बना रहे हो। क्या करते हैं हम उसको इंसर्ट कर रहे होते हैं इस तरह से। तो इंसर्ट करने वाला ऑप्शन सबसे बेटर है, आपका काम बचता है, आपका टाइम बचता है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपके पास अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है या कुछ समझ आया आई कैन रिपीट, तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, और अदरवाइज इजाजत दे मुझे। Brilliant session, Dr. Sava. It was a brilliant session. Thank you, Dr. थैंक यू। Sava Razak, for sharing your expertise and all the participants for their engagement. You can type your queries in the chat box. ओके मारूफ, इन केस ऑफ डुप्लीकेशन सेम आर्टिकल, यस, नंबर सेम रहेगा, ये पहले की बात है। अभी रेफरेंस आपके लास्ट में अगर लिस्ट की बात करेंगे, वो लिस्ट में मेरे पास रेफरेंस 4 नंबर पे है, ठीक। आप जहां जहां पे आप लास्ट में भी अपनी रेफरेंस डालेंगे ना, तो आपके पास नंबर 4 ही शो होगा साइटेशन में। तो ये कोऑर्डिनेशन है, मैंने आपको बताया कि आपको रेफरेंसिंग में दो चीजें होती हैं, एक साइटेशन, बिब्लियोग्राफी। साइटेशन मस्ट बी अलाइंड विथ योर बिब्लियोग्राफी, ठीक है, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। अगर आपने साइटेशन में नंबर दिया गया है कि 5 नंबर है साइटेशन में, तो वो 5 नंबर पे वो फिफ्थ आर्टिकल ही होना चाहिए। सही है, फिफ्थ आर्टिकल लास्ट में लिस्ट में फिफ्थ नंबर पे होना चाहिए, तो दोनों नंबर अलाइन होने चाहिए। अगर आर्टिकल ले रहे हो ना, था वो आर्टिकल पे था ना वो, आपने थर्ड पे पोस्ट किया, अब आप उसको लास्ट में डाल रहे हो, लास्ट पैराग्राफ में डाल रहे हो। आ, आपने 40 रेफरेंसेस डाल दिए हैं, 40 के बाद भी अगर आप उसको ऐड करोगे ना, तो वो 41 नहीं होगा, वो 3 ही रहेगा, क्योंकि आपने 3 पोजीशन पे भी उसको डाला हुआ है। अगर आप उस पर्टिकुलर 3 पोजीशन से उसको रिमूव करते हो ना, तो वो फिर आपका 41 होगा। कि आपका एक बार रेफरेंस जहाँ पे साइट हुआ है ना, वो उसी नंबर को हमेशा यूज करेगा। मारूफ, मैं क्लियर हूँ या आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँ? बेस्ट एडिशन स्टाइल इज वैंकोवर। वैंकोवर जो वैंकोवर आपको हमेशा वैंकोवर ही यूज करना है अभी, ठीक है। जब तक मिलने से आपको जनरल की गाइडलाइंस में लिखा नहीं गया हो कि आप इसको एपीए में करो या IEEE में करो या किसी और स्टाइल में करो। बेस्ट वैंकोवर सिंपली वैंकोवर जो है ना आपको इस तरह से नजर आ रहा होता है। ये मैं वैंकोवर पे क्लिक कर रही हूँ, एक मिनट। वैंकोवर आपको इस तरह से नजर आ रहा होता है, जो कि बहुत आसान है, इजी टू रीड है। आपको ब्रैकेट में दिया गया नंबर और लास्ट में उसके वो दिए हुए हैं, तो आप बहुत इजीली समझ में आ रहा था कि इजीएस्ट प्रेफरेबल स्टाइल जो जनरल चैनल प्रेफर बैंक ओवर करते हैं। आप जब भी काम बैंक ओवर पे ही करो। Ma'am, another question from the audience. How can we identify predatory journal? ओके, आई एम रीडिंग द कमेंट्स, मैं बताती हूँ। अच्छा, एक और बात, मायरा निसार ने पूछा है कि व्हेन द जनरल विल टेल अस कि अच्छा जनरल बताता है कि आपको कौन सा स्टाइल जाना है। जब आप आपने पेपर को आपने पूरा कंप्लीट लिख लिया, पूरा पेपर राइट अप हो गया, मेरा ये लिखा है ना आपका मेरा पूरा पेपर है कंप्लीटेड है, अब मुझे सबमिट करवाना है एक जर्नल में, ताकि वो इसको पब्लिकेशन के लिए कंसिडर कर सके। एक जर्नल सबमिट करवा रही होती है ना, तो जर्नल में सबमिट सबमिट करवाते वक्त शो होता है सबमिशन गाइडलाइंस। मैं आपको शेयर करके दिखाना चाह रही हूँ ये, वेट वेट अ मिनट। यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ मैं।
एक जर्नल है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। दिस इज अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जर्नल। ये एक जर्नल है, इसको मैंने खोला है। मैं अपना पेपर इस जर्नल मेरा मैं इसलिए बता रही हूँ इस जर्नल का, क्योंकि इसमें मेरा पेपर सबमिट हुआ है, तो मुझे इसका पता है, ज्यादा खुला हुआ है। ये मेरे पास एक पेपर जर्नल खुला हुआ है, मैंने इस जर्नल में अपना पेपर डालना है, पेपर भेजना है, सेंड करना है, रिक्वेस्ट करनी है, मतलब जॉब जॉब की सीरीज भेजते हो। इस तरह से आपने यहाँ पे अपना जर्नल आप पेपर मैनेजमेंट भेजनी है कि इसको पब्लिश करवा लो। आप सबसे इम्पोर्टेंट, आपने ऐसे अंधाधुंध इसको सबमिट नहीं करवाना है। आपने क्या करना है, आपने फॉर ऑथर्स में जाके का सबमिशन गाइडलाइंस को रीड करना है। ठीक है, विदाउट रीडिंग सबमिशन गाइडलाइंस आप इसको सबमिट कराओगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबमिशन गाइडलाइंस में आपको बताया गया होता है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, कैसे काम करके भेजना है। तो यहाँ पे मुझे बोला हुआ है, आपको रेफरेंसेस जो है ना, 5, और आपने इसको मतलब लिसनिंग सेम होना चाहिए। तो ये प्रेफर कर रहा है, ये बता रहा है इनडायरेक्टली, वैसे मोस्टली जनरल डायरेक्टली बता देते हैं, इसको बोल रहे हैं देन कोवर स्टाइल में दे दो, देन स्टाइल, और लास्ट में रेफरेंस नंबर पे शो होना चाहिए, ऐसे ये बात बोली गई है। स्टाइल रहेगी और लास्ट में नंबर सेम होना चाहिए, तो दिस इज कोवर स्टाइल। तो वो आपको बिना सबमिशन वायरस को यूज करके भेजना होगा, आप जैसे इनडायरेक्टली आप उसको नहीं भेज सकते। ठीक। वेरी गुड क्वेश्चन वाज फ्रॉम इस्मा यूसुफ कि आपको प्रीडेटरी जर्नल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। प्रीडेटरी जर्नल्स जो है ना, ये बहुत जो है ना, एक रिस्की चीज होती है कि आपको पता नहीं होता है और आप अपना काम उसमें भेज देते हो, और वो उसने आपसे पैसे लेके सबमिट भी करवा देते हैं। सबमिटिंग योर पेपर इन एनी जर्नल में आपको ये कंसिडर करूंगी, आपको ये गाइड करूंगी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो जर्नल है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। जब भी आपने काम की जर्नल में सबमिट कराते हो, आपने उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आपके पास दो काम है, दो चीजें आती हैं। एक ये आता है कि आपने HGRS, नोट डाउन इट, मैं मैसेज भी करूँ, HJRS, ये HEC की एक प्लेटफॉर्म है जिसमें HGRS की लिस्ट होती है। दूसरा वेब ऑफ साइंस, आई एम टाइपिंग इट ताकि आपको पढ़ने सुनने में आसानी हो। वेब ऑफ SC, वेब ऑफ साइंस, these are the टू वेबसाइट्स जहाँ पे आप जर्नल की अथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। अगर आपका जर्नल सबसे पहले आप चेक करोगे कि आपका जर्नल, ये मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जर्नल की ही बात करूंगी, अब ये जर्नल खोला है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है, इसको मैं इसको चेक करूंगी। वेब ऑफ साइंस में आई एम क्लिकिंग ऑन वेब ऑफ साइंस, वेब ऑफ साइंस सर्च। जर्नल की लिस्ट होती है, मास्टर लिस्ट बोलते हैं इसको, मास्टर लिस्ट। मास्टर लिस्ट का मतलब होता है कि वो लिस्ट है जहाँ पे जर्नल पाए जाते हैं। ये मास्टर लिस्ट में वेब साइंस पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्च सर्च में का ऑप्शन है, मैंने जो पेपर था यहाँ पे सर्च किया कि अगर मेरा वो जर्नल यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जर्नल, जर्नल एवर, मैं अपना काफी देर तक सबमिट करवा सकती हूँ। ठीक, चॉइस है। बाकी इसमें इसमें आई है, आपको आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो वेब ऑफ साइंस में कि आपका पेपर जो है ना, आपका जर्नल, इस जर्नल में आप अपना पेपर दे सकते हो। सेकंड HGRS, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कैटेगरी के आपका कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जो इसमें नहीं होते, वेब ऑफ साइंस में नहीं होते। वेब ऑफ साइंस में बहुत सारा जो जर्नल्स होते हैं ना, वो होते हैं WX कैटेगरी के। डब्ल्यू ना हो तो इसका मतलब वो आपको अगर HGRS में मिल रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो अथेंटिक है, वो प्रीडेटरी नहीं है। आपने क्या करना है, HGRS पे क्लिक करना है, HGRS लिखना है, HGR HEC। ये भी एक जर्नल्स की लिस्ट है, बेसिकली पाकिस्तानी जर्नल लिस्ट। आप इस पे क्लिक करोगे ना, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपका जर्नल इसमें है या नहीं है, इसमें अगर आपका टाइटल मैंने डाला है, अगर इस लिस्ट में है ना, इसको पूरा लिखना होता है, ये इसको इसकी एक जर्नल होती है, इसको पूरा लिख लेना। तो अगर आपके पास इस जर्नल में है तो वो HEC रिकॉग्नाइज जर्नल है। जितने भी नेशनल जर्नल्स हैं वो सारे आपको HGRS में मिल जाएंगे, और जितने भी आपको इंटरनेशनल आपको वेब ऑफ साइंस में मिल जाएंगे। अगर आपके पास वेब ऑफ साइंस में वो नहीं शो हो रहा है या HGRS में वो नहीं है, लिस्ट HGRS की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी HGRS के पेज पे। अगर वो नहीं है आपके पास, अ, तो आप उसको आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। उस लिस्ट में आपको अगर जनरल आ रहा है ना, तो वो पाकिस्तानी जनरल है, बहुत अच्छे अच्छे तो नहीं है लेकिन ऑथेंटिक जनरल है, यू कैन सबमिट योर वर्क देयर। और पाकिस्तानी जनरल जो है ना, ज्यादा पैसे भी नहीं मांगते। अगर आपकी जनरल बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है और वेब ऑफ साइंस में नहीं है, ठीक है, तो आप वो प्रीडेटरी जनरल है, आप उसमें अपना काम नहीं दोगे। आपने अपना काम देना है आप ऑथेंटिक जनरल्स में। प्रीडेटरी में आप अपना काम दोगे, आपका काम जो है ना सिंपली वेस्ट हो गया है।
सिंपल वर्ड्स में ना, उसका पीयर रिव्यू हुआ है, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम को किसी ने वेरीफाई नहीं किया, पीयर रिव्यू भी नहीं हो। अच्छा। थैंक यू। अभी पब्लिशर्स पे डिपेंड करता है हमारा, मतलब एक जनरल की साइटेशन की देख रहे हो, दूसरा ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आता है। आप एक्सपीरियंस के साथ आता है कि आपका मतलब उसमें लिखा हुआ होता है पब्लिशिंग कौन सा, कुछ पब्लिशिंग बहुत ऑथेंटिक होते हैं। आगे जर्नल्स को सर्च करके जर्नल कहाँ से लिया गया, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो। मतलब आप आर्टिकल को देख के यू कांट आइडेंटिफाई कि आर्टिकल जेन्युइन है या नहीं है, देख के आप नहीं बता सकते, आप उसको जर्नल सर्च करके बता सकते हैं। आप कुछ साइटेशन देख सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन है, अगर इसकी साइटेशन ये 2/1998 में उन्होंने इसको साइट किया और HTML का फाइल डॉट कॉम पर, ये मतलब मल्टीनेशनल जर्नल का होगा तो ये ऑथेंटिक ही है, ठीक है। जिसकी साइटेशन बिल्कुल जीरो है ना, वो यहाँ पे आ भी नहीं रहा था सबसे पहले। अगर वो आ रहा होता है ना, तो उसको आप उसके जर्नल्स को सर्च करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये जेन्युइन नहीं है। इस तरह से पता चलता है, मतलब डायरेक्टली एक टू द पॉइंट, मुझे तो नहीं पता, टू द पॉइंट डायरेक्टली जंप कर जाओगे, नो दिस इज नॉट जेन्युइन। डायरेक्टली यू कांट जंप टू अ कंक्लूजन अनलेस यू सी इट्स साइटेशन। उसके जर्नल को देख के या उसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है उसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि जेन्युइन नहीं है। आप उसको कॉपी वेब ऑफ साइंस में सर्च करो, फिर आपको 100% श्योरिटी हो जाती है कि नहीं भाई ये जेन्युइन नहीं है। अगर वेब ऑफ साइंस में नहीं है, SGRS में चेक कर लो, दोनों जनरल, वो पेपर भी काम करेंगे, जनरल भी काम करेंगे। इट्स अ प्रीडेटरी वन। ओके, आई होप आई हैव गिवन ऑल द आंसर्स, मैंने कोई मिस नहीं I किया। really thankful to you, Dr. Sabha, for the insightful presentation. Hope your all the questions answered satisfactorily. Now, I would like to give you a reminder. Participants who score 4 out of 5 on the quiz will receive a verified e-certificate. The quiz link and password are in the webinar description. ये जो हमारा वेबिनार है ये अपलोड हो जाएगा 11 बजे तक व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल को जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर वेबिनार का लिंक आया हुआ होगा, उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास जो है क्विज लिंक और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपके लोगों के पास क्विज लिंक और प्रोटेक्टेड पासवर्ड होगा। और याद रखें कि जो है आप लोगों को पासवर्ड बिल्कुल सही एंटर करना है, कैपिटल है तो कैपिटल में, स्मॉल है तो स्मॉल में। आप जब वो प्रोटेक्टेड पासवर्ड एंड जो है अपनी आईडी एंटर करेंगे तो आप लोगों के पास जो है 5 क्वेश्चंस अपेयर होंगे मैक्सिमम। मिनिमम आप लोगों को उसमें से 4 क्वेश्चंस पास करने फॉर द वेरीफाइड ई सर्टिफिकेट। अगर 3 भी सही होंगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जब आप जाएंगे तो आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग की लिंक ओपन होगी। रिकॉर्डिंग की डिस्क्रिप्शन में जाकर क्विज का लिंक और पासवर्ड होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिक्चर भी भेजी थी फॉर एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, एंड जो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है एंड नोट का, ये भी आप लोगों को जो है सॉफ्टवेयर एंड इसकी की को इसके साथ वेबिनार के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगी, वहां से आप लोग जाकर ये सॉफ्टवेयर और की डाउनलोड कर सकते हैं। I really thank Dr. Sabah Razzaq for sharing her expertise. Stay tuned for more sessions from Mad Sparkles. Have a wonderful evening. Thank you and goodbye. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर बेयरिंग मी। एंड आई होप जो साउंड वॉइस प्रॉब्लम है उसको आप रिकॉर्डिंग में जब आप देखेंगे तो आपको उसको ओवरकम कर लेंगे। मैंने बार बार रिपीट किया है तो आई होप जो जिनके मिस पार्ट्स हैं वो कवर हो चुके हों। और अगर जो है ना किसी को और डिटेल में या कुछ और फर्दर इससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल, मेरे साइल गाइड यू फर्दर।